Hello and welcome to yet another episode of Coach I Need Help. Hi, I'm Manish Ahuja, and the other person you see on smiling on the screen is Pankaj Agarwal. We are both coaches. We have created this podcast, and today is episode 4 of Coach I Need Help. Today, we are going to be talking about one of the most important topics that bothers multiple coaches all across the globe all the time. Despite this is one topic that bothers many coaches, despite them being in the business for a couple of weeks, a couple of months, or maybe even a couple of years. I'm talking about niche. The big problem with this subject is it's so confusing, it's so layered, and the confusion starts from the very simple basic fact: is it pronounced niche or is it pronounced niche? So there are multiple ways to look at it. For the purpose of this episode, we are going to be pronouncing that word as niche. So if you're the niche team and not the niche team, I'm sorry for you, but yeah, we are going to be talking about niche. But before we get started, let's say a hi to Pankaj. Pankaj, how are you doing? How are you Hi excited Manishi, about this episode? What's happening? I'm doing great. I'm excited to talk about this topic as well today. Niche. In fact, I was just checking out one episode about niche yesterday, Mm-hmm. and there was a marketer who was trolling that in his college days उनको लगता था कि niche होता है. So college days में लोग अपना डेफिनेशन खुद बताते थे, तो वो एग्जाम के पेपर पे लिख के आए थे कि niche 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 या niche नीच मतलब Mm. कि जो नीच तरीका होता है, बैड तरीका होता है मार्केटिंग का, नीच लोगों करते हैं. So that kind of a trolley he was doing, so thought to share that. So है वाकई yeah. में काफी लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली नीच काफी नीच बन जाता है बिकॉज इट कैन गेट सो कंफ्यूजिंग इट कैन गेट सो harrowing. I understand that, but the purpose of this episode is probably to make it easy for all our viewers and audiences. Yes. So let's get started. Yes. So आपका क्या राय है निश के बारे में? मेरे हिसाब से तो niche is one of the most important aspects of the coaching or any sort of a business for that matter of fact, because niche helps you create your own identity. Niche helps you understand what are you doing in the market. Hmm. Okay. The identity is very strongly based on your niche according to me. So Okay. और अगर निश को डिस्क्राइब करना हो इजी वेज में लोगों के लिए, तो आप कैसे करोगे? the problem that you're solving for the market, the Hmm. more precisely you can uh, communicate what problem are you solving for your market, that problem is the niche that you are in. So for me, it's money mindset and financial literacy, which I do via Paycheck to Profit. For you, it's laser webinars. Yes. So basically, in my understanding, कि निश हो गया कि एक तो हो गया टारगेट मार्केट और एक हो गया हाँ निश. हाँ और निश का अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस भी होता है. हाँ, ये मतलब बहुत अलग जगह जगह पे होता है. होता है. हाँ हाँ. मतलब मेरे अकॉर्डिंग निश क्या हो गया कि जैसे कि टारगेट मार्केट हो गया कि एक इंडस्ट्री आप जैसे काम कर रहे हो. हाँ जैसे हाँ. जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप मेजर इंडस्ट्री है. करेक्ट और आजकल आर्ट्स वो भी आ रहा है, आर्ट भी एक इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि करेक्ट. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सिंगिंग सिखाते हैं, हैंड राइटिंग सिखाते हैं. तो वो भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, उसमें भी लोग कमा रहे हैं. तो टिपिकली चार तरह का एक इंडस्ट्री हो गया: हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड देन क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, हम्म जो भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं. तो हम्म. उसके अंदर आप अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को पकड़ रहे हो अपने मार्केट के अंदर. हाँ. तो कोई भी मार्केट हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी मार्केट हो गई कोचेस, दैट करेक्ट. इज माय टारगेट मार्केट. हम्म एंड उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके लिए फेसबुक ऐड चला रहा हूँ. हम्म. तो वो मेरी निश हो गई. मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ कस्टमर्स लाने में थ्रू फेसबुक एड्स. करेक्ट और अब निश को बहुत ज्यादा जितना भी डिप चाहे हम लोग कर सकते हैं. फॉर करेक्ट. एग्जांपल निश मतलब यही नहीं कि खाली मतलब जैसे कि मेरे मार्केट के बारे में बात करें तो मेरा स्टार्टिंग हो गया वेल्थ से, सबसे टॉप में हो गया वेल्थ. फिर उसके हम्म अंदर आ गए तो हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग हम सिखा रहे हैं. अब हम्म. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आए तो हम फेसबुक एड्स सिखा रहे हैं. फेसबुक एड्स भी किसको सिखा रहे हैं? कोचेस को सिखा रहे हैं. तो करेक्ट. बहुत सारे मतलब आपको क्या लगता है, बेसिकली क्वेश्चन हम यहाँ पे ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितना लेवल डीप रखना चाहिए निश? सो सबसे पहली बात, ये जो आप जिसको इंडस्ट्री बता रहे हो, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, ये अपने आप में भी एक नीश है. हम्म. ये नीश का सबसे टॉप कैटेगरी है. यस. तो इसमें जनरली 7 कैटेगरीज होती है. ओके. विच कम्स टू योर हेल्थ, हम्म. वेल्थ, रिलेशनशिप्स. दीज आर द टॉप 3. इसके ओके. लिए सबसे ज्यादा इसमें आता है. यस यस अब यस. वेल्थ और बिजनेस एंड करियर अलग होता है. ठीक है.
वेल्थ है, जितना भी पैसा आप डायरेक्टली अपने बिजनेस या करियर से कमा रहे हो उसको मैनेज करके बड़ा करना वेल्थ कैटेगरी हो जाती है, बट योर बिजनेस एंड करियर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट नीश. ओके. Besides that, leisure, हम्म. arts and craft, and हम्म. seventh is spirituality. ओके. So these are the top seven categories, or these are the top seven top layered niche. हम्म. In that, you can then keep going. You can keep going as deep as you can, and you can go as narrow as you can. हम्म. But it all depends on the size of the market. So there's a term in business called total addressable market. Your ओके. niche should be big enough to cater to a large total addressable market. Because what happens is, if your product, let's say, I हम्म. do, I talk about money mindset only to people who are left-handed and who are living in Mumbai. हम्म. कैटेगराइज करने के लिए अगर मैं उसको मुंबई तक के लिए लेकर आ जाऊं और सिर्फ लेफ्ट हैंडेड लोगों को लेकर आ जाऊं बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30, 20 to 40, हम्म. तो मेरा पूरा टारगेट ऑडियंस कितना छोटा हो गया. क्योंकि जब मुझे उन्हें टारगेट करना है, जब मेरे को एड्स चलानी है, तो मैं कैसे उनको केटर कर पाऊंगा. आपका ठीक जो है. टारगेट मार्केट होना चाहिए, जो आप डिफाइन करते हो अपना नीश के लिए, वो इतना ब्रॉड होना चाहिए कि उसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा हो, जिनको वही प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है अपने लाइफ में. गॉट इट. और वो कितना बड़ा हो, कुछ ऐसा मेट्रिक कुछ होता है, या फिर बस कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि लेफ्ट हैंडेड जो मुंबई में रह रहे जो 30 एज के बीच है, वो बहुत छोटा हो गया या बड़ा हो गया, वो कैसे पता चलेगा? इसका सबसे इजी तरीका है, या तो आप रिसर्च कीजिए, या तो आप थोड़ा सा एड चलाइए फेसबुक पे, और आपका अगर लीड कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये बहुत नैरो है. फेसबुक को इन लोगों को टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपसे वो पैसे भी उतने चार्ज कर रहा है. और इसमें दूसरा चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंडेड वाला का कोई काम नहीं है इसमें, कि क्या फर्क पड़ रहा है लेफ्ट हैंडेड हो चाहे राइट करेक्ट. हैंडेड हो, उसको करेक्ट. उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ रहा है? करेक्ट. बट हाँ, जो सेकंड कैटेगरी लगाए कि अगर मुंबई में रहता है, और जो एज ग्रुप है जिसका 25 से 30, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज भी होता है लोगों का, कि एब्सोल्युटली. हाँ 25 से 30 एब्सोल्युटली. के बीच में वो फ्रेशर है, मतलब बस जॉब का जर्नी चालू कर ही रहा है, 1 से 5 साल के बीच में भी एक्सपीरियंस्ड हो, मुंबई में रह रहा है तो उसका लिविंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ डिफरेंट होगा, तो उसके करेक्ट. अकॉर्डिंग आप उनसे बात कर सकते हो, मैसेज जो अपना क्रिएट करोगे, ऐड चलाओगे, तो सारा कुछ अपना मैसेजिंग उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, सारा कम्युनिकेशन उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो. तो एब्सोल्युटली. वहां पे हम लोग को, मतलब कभी कभी रिसर्च के अलावा भी हम लोग खुद से भी उसको जज कर सकते हैं कि चलो यही हटा दो, कि ये बहुत ज्यादा डीप हो जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है. फॉर करेक्ट. एग्जाम्पल मेरे लिए क्या हो गया, ये कोचेस हो गया, तो हाँ. हम कोचेस को सिखा रहे हैं तो वो एक कैटेगरी हो गया, वर्सेस हाँ. हम ई कॉमर्स को सिखाते हैं, तो दोनों को तो वो हम एक ऐड ही अलग. सिखा रहे हैं, लेकिन हाँ. ई कॉमर्स का पूरा मार्केटिंग का तरीका अलग हो गया, उसका प्रोडक्ट अलग हो गया. जैसे कोच सिखाते हैं तो उनका 100% वो रहता है, पैसा आ रहा है, उसमें से थोड़ा सा ही कटता है, लाइक 80% 90% वो रख सकते हैं पॉकेट में इंडिविजुअली अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो. बट अगर उसको पकड़ रहे हैं हम लोग ई कॉमर्स को, तो उसका कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्शन रहता है, पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स चालू हो जाता है वहां पे, करेक्ट. शिपिंग का कॉस्ट, इसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट, तो दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री हो गया, दोनों को ऐड चलाने का तरीका भी डिफरेंट हो गया. सो मेरे लिए एब्सोल्युटली. निश हो गया कि हम कोचेस को हेल्प कर रहे हैं सिर्फ मार्केटिंग के लिए. हाँ, कोचेस या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि उनका यस. कैटेगरी सेम होता है. वट एवर प्रोडक्ट यू हैव इज ईदर directly associated with your a digital product that you've created, or the time that you put into your client's work, or a service provider or a freelancer. इन पूरी कैटेगरी के लोगों का एड्स चलाना और इनका जो आउटकम होने वाला है वो सिमिलर होने वाला है. यस, जहां जहां ऑलमोस्ट सिमिलर काम हो रहा है, उसको हम हम्म. लोग रख सकते हैं कि ये मेरा निश है. करेक्ट. तो ठीक है. आपके हिसाब से नीश को ब्रॉड रखना चाहिए कि नैरो रखना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? बिकॉज मैं बहुत सारे कोचेस के पास जा हम्म. चुका हूँ, सब लोग कहते हैं कि नीश को बहुत नैरो रखो. हम्म. तो आपका इसके लिए क्या ओपिनियन है? यही जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, कि बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं रखना होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपना बात करें, तो मेरा निश हो गया कि पूरा वेल्थ मार्केट हो गया, या फिर वेल्थ के अंदर जा रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया. तो हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा रहे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप देखोगे तो एसईओ आ गया, कंटेंट मार्केटिंग आ गया, यूट्यूब अपने आप में एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, लोग बना के कंटेंट कर रहे हैं, ईमेल हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, तो हजार तरह का मार्केटिंग आता है उसमें. तो अब उसके अंदर हम सिखा रहे पेड एड्स. पेड एड्स के अंदर भी
पेड एड्स में हो गया आपका लिंक्डइन से पेड एड चलाओ, ट्विटर से चला लो, इससे चला लो, उससे चला लो। अब पेड एड के अंदर भी हम चला रहे हैं सिर्फ फेसबुक से, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मेरे ऑडियंस आ रहे हैं उसके लिए हम चीजें बहुत आसान बना दे रहे हैं। मतलब करेक्ट। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बन जा रहे हैं कि आप अगर आते हो तो आपको पहले आपका निश पता करना है, उनको भी निश पता करवाते हैं हम। फिर आप ऑफर पता कर लो, फिर आप लैंडिंग पेज बना लो, और ये सब निश वगैरह क्लियर हो जाता है तो मैसेजिंग उनको लिखने में बहुत आसान हो जाता है। तो कहने का एब्सोल्युटली। मतलब क्या है कि उसको बस देखना है हम लोग को खुद से कि कितना बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप लेफ्ट हैंड वाला एग्जांपल लियो, बहुत ज्यादा नैरो हो गया। मेरे करेक्ट। केस में क्या नैरो हो जाएगा, चलो फेसबुक ऐड चला रहे कोचेस के लिए ये साइजेबल कैटेगरी है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख होंगे, और ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है, अभी तो बस चालू ही हुआ है। जैसे हम लोग फ्यूचर पास्ट एपिसोड्स में बात करते थे, ये जस्ट चालू ही हुआ है अभी। बट अगर इसमें हम 4-5 लेवल और डीप लगा देते हैं कि सिर्फ फेसबुक ऐड सिखा रहे कोचेस को जो बैंगलोर में रहता है और जो मे बी हेल्थ कोचेस है, सो वो भी एक निश का कैटेगरी हो गया, एक लेवल और करेक्ट। डीपर चले गए जो हेल्थ कोचेस है हु वांट्स टू रन फेसबुक एड्स। बट मैं अभी फिलहाल वो नहीं कर रहा हूँ। मैं मुझे लगता है कि वो जो आप बता रहे थे टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है वो थोड़ा हाँ। और कम हो जाएगा। हम्म। तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना है, मे बी ऑफ कोर्स वो ट्राई कर सकते हैं। तो इसका कुछ मुझे लगता है कि कुछ आंसर नहीं है परफेक्ट मेरे हिसाब से। बस ट्राई करना है कि किस मार्केट में हमको साइजेबल नंबर ऑफ ऑडियंस मिल रहा है। अगर हम वेबिनार चला रहे हैं तो वेबिनार पे मेरे हर वेबिनार पे 100-150 लोग आ रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हम स्टार्टिंग में। आपका क्या टेक है इस पे? मेरा इसमें काफी कंट्रोवर्शियल टेक है। क्या? मतलब ये everybody says go as narrow as possible. So हम्म accordingly, let's look at what if I was Pankaj's competition or I हम्म was doing exactly what Pankaj is doing. I'll tell you how I would do it a little हम्म differently. Okay. So Pankaj is doing webinar training. So first of all, I would not even call myself as a person who's talking about I teach you how to do your webinars and Facebook ads. I would हम्म package it differently and I would tell you, I help you with performance marketing of your business. हम्म, First, I'm completely changing my packaging for the same product. Because ठीक when है। I come to Pankaj, what is he going to help me with? He can help me with how do I package my product correctly, figure out my niche, figure out my target audience. One. हम्म For performance marketing, you need to do this anyway. Second, you will help me identify my what platform should I go for, and everybody and anybody can market their products on Facebook and Instagram. Very यस few product categories. Let's say if you are selling some sort of health supplements, it will become difficult for you to market your business through Facebook. Or there are other ways also, but then 90% of the businesses can use Facebook and Instagram marketing for their product ads. So I यस would package myself as performance marketing for small businesses, performance marketing for businesses who are getting into the whole concept of uh, running their ads for the first time. People and businesses who want to run their ads by themselves and not hire an agency because their budgets are too small. हम्म So I would solve one problem, but I would figure out different ways to cater to a much bigger market. So the way you said, you don't want to talk to people who are in e-commerce, and you have your reasons for that. हम्म I would also try to put people from e-commerce in my community because that widens my market. यस, सो वी कैन डू दैट। बट मुझे क्या लगता है कि जितने स्पेसिफिक रहेंगे स्टार्टिंग में, वी कैन स्टार्ट दैट। एंड अगर मल्टीपल एड्स रहता है, मान लेते हैं अगर ई कॉमर्स को भी हम लेना चाह रहे हैं, सो उनके लिए एक अलग ऐड बना देना ज्यादा अच्छा रहता है। लाइक हाँ। अगर प्रोडक्ट सेम है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम एबल टू हेल्प ई कॉमर्स एज वेल, हाँ। सो इट्स फाइन, वी कैन स्टार्ट विद दैट। बट उनके लिए अलग अलग मैसेजिंग रखना जरूरी है। सो अगर ई कॉमर्स से बात करें तो उनको बात करें कि आपका आरओएस बहुत ज्यादा आ रहा है, आपका कॉस्ट इतना बढ़ रहा है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, ये वो, तो उसके हिसाब से एक ऐड बना रहे हैं। हम्म। तो अगर कोचेस से बात करें तो कोचेस के लिए अलग ऐड बना रहे हैं कि आपको स्टूडेंट्स चाहिए कि ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। डॉक्टर्स के लिए डू यू वांट टू गेट मोर वॉक इन फॉर इन योर क्लिनिक एंड ऑल। तो करेक्ट। बिजनेस ओनर्स के लिए अलग हो गया। सो इससे क्या मुझे लगता है कि काम भी बढ़े आता है स्टार्टिंग में। इसके लिए मेरे पास एक बहुत तगड़ा देसी जुगाड़ तरीका है हम्म कि आपका जो एड हो जिसपे आप पैसे लगा रहे हो, जिधर आप वेबिनार के लिए या किसी लीड मैग्नेट के लिए अगर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, दैट कैन बी अ वेरी ब्रॉड एड. हम्म Are you running a business? Are you not marketing your business? And if you're marketing your business, are you
getting really high lead costs? How can you Hmm. manage your entire funnel? I can teach you all of that. So it doesn't matter if you're a doctor, if you're a coach, if you are somebody who's in the e-commerce industry, this webinar is for you. So I will address all the categories within my market. I will expand my total addressable market as much as possible. And then in the webinar, I'll show various case studies. And how do I get a specific target market to my webinar or to my community? Instead of running multiple ads, I will create multiple targeted videos on my YouTube channel. How does performance marketing for e-commerce differ from all other businesses? How does performance marketing for doctors differ from all other businesses? Okay. हाँ तो दोनों दोनों तरीका है लाइक वी बोथ आर ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स मतलब हम लोग चाहे तो उसको बड़ा भी रख सकते हैं हाँ, और चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं मतलब करेक्ट। तो मेरा करेक्ट में अप्रोच कुछ है भी नहीं कीप है इट एज वाइड एज पॉसिबल। जैसे पेचेक टू प्रॉफिट में अगर मैं इसी के लिए मैंने बोला यहाँ पे मेरा कंट्रोवर्शियल है। पेचेक टू प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो आई एम एड्रेसिंग एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इंडस्ट्री यू आर कमिंग फ्रॉम। if you're a business owner, if you're a homemaker, anybody who wants to redefine their relationship with money. But when I run ads in different categories. This ad is only for trainers, this ad is only for business owners, this ad is only for working professionals. So yes, that happens. But instead of focusing ads on working professionals, I focus on one particular category of relationship with money which is bothering everybody. So let's say, are you dealing with your EMIs? Are you dealing with your with do you don't know how to manage your money? Or are you always running short of money at the end of the month? So that creative will remain the same, the copy changes. Yes, makes sense. So that is how I go about it. Like I recommend people to try and look for a niche or a particular problem that you're solving, which is so big that a very large part of your audience can fit into that category. But then you should have the confidence, you should have the content, you should have enough material. As Pankaj said, you have to be smart enough to understand that performance marketing for e-commerce is very different for performance marketing for digital products. Performance Yes. marketing for physical business or a local business is very different from any other business. So when you are targeting these different markets, your content has to be very straightforward for all of these categories also. Let's say if I am an e-commerce brand owner and if I come to your program and if I feel that I'm not getting value, you are going to lose out on a lot of e-commerce players because I will not be able to I will not end up giving you good reviews. Yes. So you have to create a product in such a manner that you cater to a very large audience. And when you cater to a large audience, you automatically get the conviction and the confidence to create ads for a much bigger audience. Got it. So शायद इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि एड्रेसेबल मार्केट को बड़ा रखना है बट तभी तक जब आपको लग रहा है कि आप आराम से उसको कैटर कर सकते हाँ हो। हाँ जरूर, फॉर yes, एग्जांपल absolutely, मुझे कोचेस के साथ एक्सपीरियंस है, कोचेस हो या फिर सेम चीज हम लोग बाकी सर्विस प्रोवाइडर पे भी लगा सकते हैं, कंसल्टेंट पे भी लगा सकते हैं। सो मैं उनको भी correct, अपना फनल में ला सकता हूँ। बट ई correct, कॉमर्स मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो correct, और वो ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उस ई कॉमर्स वाले को अपना रिजल्ट लाने में। सो correct. इट्स फाइन कि उसको अलग रखो, सिर्फ डिजिटल सर्विस हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स जिसके पास है उसको अपना फनल पे ले लो। करेक्ट। हाँ वही है, मतलब यू शुड नो व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग एंड व्हाई आर यू केटरिंग टू 4 categories and not just 3 categories, and how is your product going to satisfy all the 4 categories. यस, गॉट इट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का है कि वेरियस वेज टू कैटेगराइज निश। जैसे कि इसमें मैं ये मेरी ओपिनियन रहेगी इसमें, जैसे कि अगर निश किसी को करना है हाँ, तो इस पॉइंट पे आप क्या एग्री करते हो? पहले आपसे हम पूछते हैं क्योंकि इसमें मुझे भी इनपुट ऐड करना है, क्योंकि आप बोल रहे हो बहुत वाइड रखना है निश। नहीं, ट्राई करना है। हर हाँ। इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हेल्थ में मैंने ऑब्जर्व किया, आप जितना नैरो जाते हो उतना आपको हेल्प करेगा। वेट लॉस फॉर विमेन हु हैव जस्ट डिलीवर्ड बेबीज, और योगा फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। क्योंकि हेल्थ में क्या होता है ना, एक ही प्रॉब्लम का ऑडियंस साइज बहुत बड़ा हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। एंड हेल्थ कोचेस कैन नॉट, very few health coaches can actually cater to a much wider audience on यस। through online coaching.
करेक्ट. So it's a very different mix based on what exactly is the problem that you are solving and who are you solving it for. So this is not a करेक्ट. one size fits all answer. It automatically depends on your niche, your personality, the product that you are creating, and how are you solving the problem. ओके, तो ये सब चीजों को माइंड में रखना है, उसके हिसाब Correct. से अपने अपने निश आ जाएगा. जैसे कि अभी अभी तक मुझे लग रहा था कि आप खाली वाइड वाइड कर रहे हो, वाइड निश रखना है, बट आप हेल्थ का एग्जांपल लिए तो मुझे अब और क्लैरिटी मिल रहा है कि अच्छा, हेल्थ वाले मतलब कि वो सिर्फ डायबिटीज वालों को हेल्प कर रहा है, कोशिश बट वो. करनी है. हाँ. कोशिश करनी है कि आप जितना. So the idea is you have to find a correct mix. हम्म. जैसे सपोज मैं हर चीज को यही बोलता हूँ, वी आर इन द डिजिटल कोचिंग स्पेस बट ट्राई टू imagine this entire business as a physical business. हम्म. So if you were starting a retail store, ठीक है. you can start a retail store at 50 square feet also, हम्म. and you can start the same retail store in 50,000 square feet also. हम्म. जैसे सपोज अगर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फर्नीचर, ओके. एक 50 स्क्वायर फीट का स्टोर जो होगा वो छोटे छोटे सिर्फ क्या बोलते हैं फर्नीचर के एकदम हार्डवेयर की छोटी छोटी चीजें बेचता होगा. हम्म. ये उसका नीश हो गया. अब क्योंकि उसके पास स्पेस लिमिटेड है तो वो प्रोडक्ट भी लिमिटेड रखेगा, उसका कैपिटल भी लिमिटेड होगा. वर्सेस एन आइकिया जो फर्नीचर के नाम पे 50,000 स्क्वायर फीट का दुकान बनाता है और सारी की सारी कैटेगरीज को फिर वो केटर कर पाता है. हम्म. So similarly, as a digital business owner or as a coach, depending on who your target market is and what problem are you solving, हम्म. आपका ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल दुकान को अगर आप इमेजिन करोगे तो कितना बड़ा दुकान लगेगा, कितने लोग एक साथ आ पाएंगे, आप कितने लोगों को एक साथ केटर कर पाओगे, वो आपको सोचना है. गॉट इट. सो अगर हम फेसबुक एड सिखा रहे, तो वो मेरे सेमिनार हॉल पे डॉक्टर्स बैठे हैं, कोचेस बैठे हैं, ई कॉमर्स करेक्ट. बैठे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ऑडियंस लोग, तो वो क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो बाकी ऑडियंस को भी हेल्प होना चाहिए, बाकी ऑडियंस को लगे नहीं एग्जैक्टली. अरे ये कहाँ आ गए हम, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है. करेक्ट. करेक्ट. सो सपोज अगर सेमिनार हॉल में एक ई कॉमर्स वाला मुझे पूछ रहा है तो मुझे सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है कि आपको पता है आपका जो ROAS होने वाला है वो आपको फर्स्ट सेल पे नहीं सेकंड या थर्ड सेल पे मिलने वाला है. हम्म. अगर ये स्टेटमेंट मैंने उसके साथ कम्युनिकेट कर लिया तो हम्म. मेरा आंसर उसको आधा तो उधर ही पहुंच गया. अब जो हम्म. भी ई कॉमर्स में नहीं है उसको पता है कि उसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं था, बट उसके बाद में मैं उसको जो भी समझाऊंगा उसके काम आएगा. यस. सो वो हो गया बेसिकली कि अगर उसको भी कैटर करना है तो उसके लिए अलग से हम लोग को थोड़ा वो करना है. एग्जैक्टली. तो उसी ठीक है. हिसाब से as simple as that, if you walk into an IKEA store and हम्म. if you want to go only into the प्रोडक्ट कैटेगरी की, ठीक है सिर्फ छोटी छोटी चीजें उठानी है. अब हम्म. मैंने ज्यादा IKEA स्टोर्स नहीं देखे हैं, लेकिन जो मैंने देखे हैं वो जनरली 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड होते हैं. हम्म. आप पहले फ्लोर में जाते हो जहाँ पे सारे रूम्स बनाए हुए होते हैं, उसके बाद में आपका कैफे होता है और उसके बाद में एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे आपके सारे रेडी टू पिक प्रोडक्ट्स होते हैं. अगर आपको रेडी टू पिक प्रोडक्ट्स ही लेने हैं, ठीक है ना, आपको हम्म. पूरे रूम्स नहीं देखने, आपको ऑफिस सेटअप नहीं देखना है, ताकि आप देख सको कि उनके कौन से प्रोडक्ट्स आप कैसे अपने लिविंग स्पेस में फिट इन कर सकते हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं, आप सीधा डायरेक्टली उस कैटेगरी पे आ जाओ जहां पे आपका काम है. करेक्ट. वैसा जैसे आप मॉल जाते हो तो मॉल में हर तरह के स्टोर्स होते हैं, लेकिन वो जोन बनाए हुए होते हैं. ठीक है, फुटवेयर के सारे दुकान जनरली एक ही सेक्शन में होते हैं, हम्म. लेडीज के अपैरल के गारमेंट्स जनरली एक ही सेक्शन में होते हैं, लगेज का सेक्शन या जो भी बाकी की चीजों का सेक्शन है वो एक ही जगह पे होता है. वैसे आपको अपने बिजनेस को सेट ही ऐसा करना है कि कोई भी अगर आए तो आप उनको क्लियरली डायरेक्शन दिखा सको कि सर आप ये वाले डायरेक्शन में चले जाओ, आप जो ढूंढ रहे हो आपको वो मिल जाएगा. करेक्ट. तो मॉल अपने आप में क्या है, मॉल निश मार्केट है या फिर मास मार्केट मॉल है? नीश मार्केट है. मॉल नीश मार्केट है. कैसे? किसके लिए? फॉर पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर इनकम ग्रुप. हम्म. If you are absolutely on the economical side of things, you can go and buy things on the roadside. हम्म. If you are coming from a little higher income capacity, you can go to the local domestic market, retail यस. stores, mom and pop stores. If you have a little more paying capacity, you can go to a well-defined shopping center. In other countries, this concept is called a strip mall, where there's a strip of stores in one area and they are specialty stores. ओके. तो ये. Over that, हम्म. huh, आप over बताइए. that, if you have
have really good, if you have very decent paying capacity, then you go to a mall where you find everything under one roof. If you have extremely high paying capacity, you go to a luxury mall. ठीक है. सो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप डिफाइन कर लिए, इनकम कैटेगरी के अकॉर्डिंग मॉल को. सेकंड हो गया, अगर हाँ, हम देखें, अगर मेरा देखने का एंगल रहेगा, तो मॉल तो वो हो गया ना कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. उसके अंदर भी तो मल्टीपल निशेस है ना, मल्टीपल स्टोर्स है. हर हर तरह का तो स्टोर है, हाँ, खाने obviously. पीने का स्टोर है, कपड़े का स्टोर है. तो वो तो अलग अलग मार्केट, मतलब मल्टीपल निश को एक जगह रख रहा है, तो उसको आप कैसे लेकिन टैकल रियल सोचोगे? एस्टेट में, जैसे रियल एस्टेट में जो डेवलपर था, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बना सकता था, कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकता था, होटल बना सकता था, हम्म. कोई एंटरटेनमेंट पार्क बना सकता था, लेकिन उसने मॉल चूज किया. हम्म. तो बेसिकली ये हो गया कि देखने का कैटेगरी हो गया, एक चीज का अलग अलग करेक्ट. डेफिनेशन हो सकता है हाँ, कि किसी के लिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हिम, उसके नजरिए से ये क्या है. एग्जैक्टली. सो जैसे मुंबई में एक मॉल है जिसका नाम है हाई स्ट्रीट फीनिक्स, लोअर ठीक है. परेल एरिया में है. वहां पे आपको, मतलब किसी जमाने में वहां पे बिग बाजार भी था, हम्म. रेगुलर स्टोर्स भी थे, और पलेडियम नाम का मुंबई का इकलौता ही बोलूंगा, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि बहुत नहीं, दूसरा भी एक आया है, जियो वर्ल्ड ड्राइव. सो उस एक जगह पे आपको फैमिली ओरिएंटेड वर्किंग प्रोफेशनल्स या एब्सोल्युटली बिगनर्स के लिए, या लो मीडियम इनकम ग्रुप के लोगों के लिए बिग बाजार टाइप कैटेगरी के स्टोर्स भी थे. रेगुलर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए आपके सारे ब्रांड्स भी थे जो भी आप हम्म. सोच सकते हो. एंड टॉप एंड कैटेगरी के डिजाइनर स्टोर्स भी थे हम्म. एक ही मॉल में. बट देन दे रियलाइज कि जो बिग बाजार टाइप स्टोर्स हैं वो ज्यादा नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने थोड़े थोड़े करके उनकी सारी जब लीज खत्म हो गई, तो उन्होंने वो वाले स्टोर्स को केटर करना ही बंद कर दिया. नाउ दैट बिग बाजार का एंटायर स्टोर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स ऑफ H&M इन द कंट्री. हम्म. सो वहां पे वो ऐसे चलता रहता है मॉल्स में. एवरी प्रोडक्ट इवेंचुअली स्टार्ट अपग्रेडिंग वन स्टेप एट अ टाइम. करेक्ट. सो निश का बेसिकली हम लोग को लगता है कि लाइक कैसे फाइंड आउट करें कि जैसे हम लोग बात करें कि निश को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं. जैसे एक अभी आप कैटेगराइज कर दिए इनकम के बेसिस पे, हाँ, तो सेकंड हम लोग में भी कैटेगराइज कर सकते हैं जेंडर के बेसिस पे, कि करेक्ट. थर्ड हो गया हम लोग एज के बेसिस पे कैटेगराइज कर There सकते हैं. can be multiple, innumerable number of ways to categorize, but you should categorize in such a way so that you हम्म. know that you are also not losing out on too many customers. हम्म. ओके. सो मतलब कोई राइट और रॉन्ग वे नहीं होता है कि नहीं इसी तरीका से हम लोग को निश बनाना होता है, ऐसे ही बनाओ. हर बिजनेस के लिए एक ही राइट तरीका होता है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए राइट तरीका कौन सा है, उसके लिए आप प्रोबेबली कोच के साथ कंसल्ट करो, हम्म. पीयर ग्रुप्स के साथ बात करो, अपने कस्टमर्स के साथ सर्वे करो. अपना one of the best ways to do this is to create content and see the analytics and see what kind of videos are doing good on your YouTube channel, so you'll understand, oh, I did not realize that if I created one video for doctors it would हम्म. get so much traction. मेरे को रेगुलर व्यूज जैसे सपोज मेरे वीडियो पे 1000 आ रहे हैं, ये हम्म. डॉक्टर्स वाले वीडियो के ऊपर मेरे को 2000 व्यूज कैसे आ गए? इस डॉक्टर्स अ वेरी बिग मार्केट. तो फिर मैं डॉक्टर्स के ऊपर और एक दो वीडियोस बनाऊंगा, तो और देखूंगा कि अच्छा इसने भी आउट परफॉर्म किया क्या, तो ऑटोमेटिकली अच्छा डॉक्टर्स को परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेकर बहुत बड़ा मार्केट है, तो चलो मैं डॉक्टर्स को भी कैटेगराइज करूंगा. इट्स ट्रायल एंड एरर, इट्स अंडरस्टैंड योर एंटायर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड योर मार्केट, ये गेम चलती रहती है मतलब कंटिन्यूअस निश को रिफाइन करते रहना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आज हमेशा. पकड़ लिए तो यही सही निश है, ये राइट निश है, रॉन्ग निश है. इसमें भी एक तरीका है, एक हम्म. चीज है जो आप कभी नहीं बदल सकते हो, हम्म. विच इज द कोर प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व. ओके. आज आप लेजर वेबिनार कर रहे हो, हम्म. आप अचानक से कल सुबह को उठकर ये नहीं बोल सकते हो कि मैं लेजर वेबिनार एंड यूट्यूब चैनल के ऊपर एक चैनल कोचिंग चला रहा हूँ. हम्म. अगर आपके इसमें कंटेंट मार्केटिंग इज अ वेरी बिग पार्ट, चलो ठीक है, यूट्यूब फिर भी आप स्क्वीज इन कर सकते हो हम्म. क्योंकि कंटेंट बनाना जरूरी है. बट यू कांट से कि चलो मैं एक लेजर वेबिनार भी सिखाता हूँ, एसईओ और भी सिखाते हैं. नहीं, एसईओ भी चलो एक बार के लिए आ सकता है, आपके हम्म. यूनिवर्स में आ सकता है. मैं लेजर वेबिनार सिखाता हूँ और खाना बनाना भी सिखाता हूँ, वो तो कोई वो सेंस ही नहीं एकदम बनता. अलग कैटेगरी हो गई. हाँ. सो कैटेगराइज करना अच्छा है, उल्टा
द वे आई लुक एट इट, जैसे अब अगर आप मेरा फनल देख लो, मैं लाता हूँ लोगों को मनी माइंडसेट के लिए, बट मेरा जो वैल्यू लैडर है वो बहुत अलग दिखता है. यू गेट इनटू माय प्रोग्राम्स इन पेचेक टू प्रॉफिट टू लर्न द राइट मनी माइंडसेट. Once you've learned the money mindset, then I tell you, okay, now it is time to upgrade and learn how to manage your money better. Learn how to budget, learn how to get the right amount of insurance, learn how to choose the right insurance policy, learn how to start investing in mutual funds, how you can invest in mutual funds and save so much money in throughout your life that you will automatically add at least 1% more on your overall portfolio for the rest of your life. तो वो छोटी 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 चीजों को देके यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर स्टेबिलिटी इन योर financial stability in your life. The next level after that is, it's not just about investing and becoming financially stable. It's about growing wealth in such a manner that you end up becoming financially free. If you need 10 rupees in your life, you have at least 20, 30, 40 rupees in your life without having to work too much about it. Because after one point of time, the main purpose of earning money is so that the money can earn money for you. Okay. How do you multiply your wealth? So that's level 3. And then level 4 is once you already are financially free, then I'll talk to you about a completely different product. Then I'll take you to a completely different category. वहां पर actually जो मेरा niche है ना, मेरा paycheck to profit का जो actual niche है, वो 10 साल के बाद या 4 साल के या 5 साल के बाद में मैं रिवील करूंगा. जो मैंने आपके साथ कभी बात की है इस बारे में, which I will not be comfortable sharing right now, but the final end product of paycheck to profit is a completely different membership, and that membership is my actual niche. तो ये जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कैटेगराइजिंग का, वो इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मैं वहां के लोगों के लिए एक सॉलिड प्रोडक्ट और एक सॉलिड नेटवर्क बना सकूं. ओके, गॉट इट. सो मतलब आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि अभी अगर आप मनी रिलेटेड फील्ड में हो, सो आप मनी रिलेटेड में ही रहना है. हाँ हाँ मैसेजिंग हाँ हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट ओवरऑल मनी रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको. ऐसा नहीं हाँ. कि कल आके आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरह से स्क्वीज इन कर सकते हैं, बट वो फिर वो नहीं नहीं कर जबरदस्ती हो रहा है फिर. सकते. हाँ नहीं, फोर्स फिटिंग नहीं होगा. आप पैसे कैसे भी कमाओ, उस पैसों को एक्सपैंड कैसे करना है उसके लिए मैं बात कर सकता हूँ. आप पैसे कैसे कमा सकते हो वो बात मैं नहीं करूंगा. हाँ, फिर वो एक अलग कैटेगरी होगी कि पैसे करेक्ट. कैसे कमा रहे हैं. आप बता रहे हो कि हाँ कैसे ग्रो करे उसको, कैसे सेव हाँ करे, कैसे. हाँ. गॉट इट. आप अपना माइंडसेट चेंज करके पैसे बढ़ा कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो, हाँ वो मैं बात करूंगा. बट आई विल नॉट बी एडिंग टू योर स्किल सेट्स. यस, आई तो विल वो बी एडिंग कंप्लीट. टू योर माइंडसेट. ओके, सो ये भी एक तरीका हो गया. मतलब ये क्लियर डिफरेंस दिखना चाहिए जब भी आप निश सेलेक्ट कर रहे हो. हाँ, तो आपका पूरा पोजीशनिंग भी हो गया. इसको पोजीशनिंग में हम लोग बोल रहे 100%. आपका यूनिक पोजिशनिंग जो है, हाउ हैं. आर यू डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर coach or any other service provider in your market is very, 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 very important. Now, this is also one of the major benefits of being in business today is you can define your business to such a category कि भाई तुमको अगर ये प्रॉब्लम है ना, सबसे पहली बात तो थ्रू योर मार्केटिंग, थ्रू योर एडवर्टाइजिंग, थ्रू योर कंटेंट, you are only supposed to cater to the right set of audience. And you're supposed to tell them, you know what, you have this problem, because people don't even realize the kind of challenges that they are dealing with. So you make them realize that this is your problem. There is a solution to this problem. I am introducing you to the problem, and I'm being able to introduce you to this problem because I have been through this problem and I've solved it. And this is how I've solved it. So this is my formula to solve this problem. Now you can go and apply this formula by yourself, or you can come to me and I will help you solve it step by step. ओके, सो गॉट इट. और एक एक चीज और है, जैसे आप बताए थे कि कुछ भी चीज हो रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में कंफ्यूजन रहेगा, तो उसको ऑफलाइन मार्केट से कंपेयर करना है. हाँ, मैं सो लाइफ में किसी भी ऑनलाइन चीज को, सर्विस, प्रोडक्ट, किसी भी चीज को मैं रियल वर्ल्ड के साथ 1 to 1 कंपेयर करके लॉजिक बनाता हूँ. करेक्ट. तो ऑफलाइन में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स हो गया, क्लोथिंग स्टोर हो गया, तो ये ऑलरेडी जितना भी ऑलमोस्ट हर स्टोर है या ब्रांड है, सब अपने आप में एक निश मार्केट पे ही काम कर रहा है. करेक्ट. या फिर कुछ अलग है? मतलब यही क्वेश्चन है मेरा कि आपको क्या लग रहा है, वो सारा का सारा निश मार्केट पे काम कर रहा है या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे चल रहा है? नहीं, जैसे हॉस्पिटल है,
वो एक ब्रॉड नीश हो गया। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ब्रॉड नीश हो गया। उसमें अगर आप सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हो तो वो नीश मार्केट हो गया। ओके, सो मतलब पूरा दुनिया निश पे चल रहा है, कोई ब्रॉड निश पे चल रहा है, कोई नैरो निश पे चल रहा है, अगर बट आप चल सब बिजनेस निश पे पे रहा है। हो तो आप एक नीश पे हो। सीधा हिसाब है। हाँ, आपका अगर बिजनेस में नीश नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ कर रहे हो। तो उसका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि वही आप बता रहे थे कि पंकज जो को डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कभी खाना बनाना सिखा रहा है, कभी कुछ सिखा रहा है, रैंडमली सिखा रहा है, तो वो तो देखिए, बिजनेस बना ही नहीं ना। इसका है ना एग्जाम्पल देना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर नीश में नहीं है वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ बिजनेस चले जाते हैं। हम्म, तो जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसमें मल्टीपल चीजों का यूट्यूब चैनल चला रहा है, मान लेते उसका इनकम करने का तरीका ही ये पूरा यूट्यूब कंटेंट से कमा रहा है, उसमें हर टॉपिक पे कवर कर रहा है, बट उसमें भी तो ज्यादातर होता ही है ना, ट्रैवल ब्लॉगर होता है, फूड ब्लॉगर हो करेक्ट, गया, या फिर करेक्ट, मनी माइंडसेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें करेक्ट, भी जनरली आज में तो आज के ट्रेंड तारीख में तो लोग ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट पे ही बात करता है खुद करेक्ट। से ही। क्योंकि एक सिंपल चीज समझो, एक ही इंसान ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल, हम्म फूड, स्टेशनरी, बुक्स, ये हम्म सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएगा इन एब्सोल्यूट डेप्थ। हम्म और अगर आपको किसी भी चीज में बड़ा होना है तो आपके अंदर डेप्थ होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, वरना ऊपर ऊपर से बात करोगे तो फिर क्या ही लोगों को रीजन, मतलब लोग दूसरा को फॉलो करें ना, आपको क्यों फॉलो करें? करेक्ट। हम्म यार, आप तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, पर्सनालिटी, ऑथर, किसी चीज को भी देख लो, हम्म दे ऑलवेज हैव अ नीश, ऑलवेज। ओके, और ये निश कहाँ बनता है? पैशन के अराउंड बनता है क्या, या फिर बिना पैशन का भी बना सकते हैं? बस चलो मुझे, जैसे अगर कोडिंग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कोडिंग ही कर रहा है, तो वो क्या उसका पैशन था, उसके अराउंड निश बनाए, या फिर जो नहीं भी अच्छा लगता, जो हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट में, हम उसके अराउंड निश बनाए? आपका क्या ओपिनियन है? मतलब इसके लिए मैं एकदम अनफिल्टर्ड आंसर दूं जिसको देख के हो सकता है ऐसे। सारा कुछ हम लोग को अनफिल्टर्ड ही रखना है इसमें तो। हाँ, लेकिन इसमें तो मतलब हो सकता है कि 10-15% हमारे जो व्यूअर्स है वो मतलब देखना ही बंद कर दे पॉडकास्ट। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। If you are not passionate about whatever you're doing in life, हम्म if you're not passionate about any aspect of your life, your work, your content that you're creating, the coaching that you're doing, your relationships, you are actually living a compromised life. तो अगर आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपका पैशन नहीं है तो आप प्लीज उसे इमीडिएटली करना छोड़ दीजिए, या आप पैशन के साथ जुड़कर उस काम को कीजिए, तभी ही आपको उसमें ग्रोथ या you'll flourish only when you have passion by your side. बिना पैशन के काम मत करो। I ये am a सही। very 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 strong believer of love what you do what you love. हम्म ओके, सो अगर कोई जॉब कर रहा है और उसको जॉब पसंद नहीं है, छोड़ दो, मजबूरी है तो? दूसरा जॉब ढूंढो, अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढो, गॉट इट। खुद के स्किल सेट्स बढ़ाओ और अपने जॉब को चेंज करो। जब तक वो जॉब, ऐसा जॉब में ना पहुंच जाए जहाँ काम करने में अच्छा लग रहा है। करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़कर घर पे बैठकर अपने पुराने जॉब को गालियां दो, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला ये जॉब छोड़ दो। हम्म मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूं, मैं बहुत डायरेक्ट हो रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये सुनना बहुत जरूरी है। यस, होता है ये, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे भी वेबिनार्स में आते हैं, और उनको मैं देखता हूँ कि लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, हम्म, उनको खुद नहीं आ रहा, खुद प्रैक्टिस भी नहीं किया, बट डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे। क्यों सिखा रहे? क्योंकि बाकी लोग सिखा रहा है, बाकी लोगों हम्म। को अच्छा आता है, तो चलो मैं भी एक डिजिटल कोच बन जाता हूँ, कि बहुत ऐसे पैसे है इसमें। लोगों से फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा कैसे? फायदा है फेसबुक को, उसके बैलेंस शीट में बैठे बैठे पैसे आ जाते हैं। हाँ ठीक है ना, बिना ज्यादा मेहनत किए ये भाई साहब 10,000, 20,000, 30,000 रुपए कुछ तो पैसे ऐड में डालेगा। हाँ, कुछ दिन तक डालेगा, भले बाद में बंद कर दे, नहीं चल एक रहा है तो। एक वर्डप्रेस की वेबसाइट लेगा, एक डोमेन खरीदेगा, तो बिजनेस को पैसा मिलता है ओके, वही इन हम द सोच बिग रहे पिक्चर। थे कि फायदा हाँ, किसको है, नुकसान तो सभी को है। दूसरों को है ना। ठीक है, तो अगर आप फेसबुक के शेयर ओनर हो, जो आज आप बन सकते हो बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर लिस्टेड इन यूएस स्टॉक यस। एक्सचेंजेस, तो थोड़ा सा फायदा ऐसे ऐसे लोगों का 10-20 पैसे का फायदा आपको भी होगा। ठीक है, नुकसान ऑन द बिग पिक्चर हमारी इंडस्ट्री का। गॉट इट।
क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर, अभी आप एवरेज कंज्यूमर को देखिए, अब इसका भी मैं एक फिजिकल वर्ल्ड के साथ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। ऐसे तोल नाप नाम का एक वेबसाइट है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता है। बहुत पहले सुने थे, टीवी हाँ पे भी मैं आता था शायद। हाँ हाँ मैं उसका क्लियर नाम नहीं ले पाऊंगा ताकि हाँ। तकलीफ ना हो जाए, लेकिन जो भी ये सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा। हम्म। वो 200 रुपए में रजाई बेचता था, 300 रुपए में कोई किचन इक्विपमेंट बेचता था, और जो भी लोग वहां से चीजें खरीदते थे, दे हम्म। वुड नेवर बी हैप्पी because they were never selling quality products. They were selling products which are always in trend. They would always give a low ball price. They would always sell products only on the basis of price, and on the advantage of price you are always going to compromise on quality. हम्म। So in the name of trend you are always going to compromise on quality. तो ऐसे लोग एक्चुअली जब ये काम करते हैं कि आज ये ट्रेंड में है तो मैं आज लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना सिखाऊंगा, आज मैं लोगों को पॉडकास्ट बनाना सिखाऊंगा, आज मैं लोगों को सिखाऊंगा कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे शुरू करना है, ऐसे लोगों की वजह से एक्चुअली मार्केट खराब होता है। करेक्ट। क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपको पंकज, मनीष और ऐसे कोचेस के बीच में फर्क नहीं पता है, आपको तो सिर्फ एक ऐड दिखती है बस। हाँ। वो, और फेसबुक रैंडमली चूज करता है, चलो इस कंज्यूमर को पंकज का भी ऐड दिखाओ, मनीष का भी ऐड दिखाओ, और ये ट्रेंड वाले का भी ऐड दिखाओ। अब और वो तो एड में लोग प्रॉमिस कर देते बड़ा बड़ा चीज की हाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे राजा बन जाओगे एक महीना में ये करके, करेक्ट। ऐड चला के कैसे आप डिजिटल कोच बन जाओगे एक महीना में। और कुछ कहीं भी ना कुछ। कहीं पता तकलीफ क्या है, ये लोग जरूरत से ज्यादा टेम्पटिंग ऑफर ये लोग बनाते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इनका इंटेंशन बिजनेस कमाना है। उनका भी इंटेंशन है ना ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए। हाँ तो बिजनेस कमाना है ना। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का हाँ लाइफ। उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइंट के ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है। तो वो उस तरह से जो काम करेगा उसका कहीं ना कहीं भुगतान हम जैसे कोचेस को करना पड़ता है। गॉट इट। तो ठीक है। अगर पैशन नहीं है तो प्लीज वो काम करो ही मत, या एटलीस्ट देन you're probably talking to some other people who are only doing their business by selling passion, become an entrepreneur who's only working according to the passion। तो ऐसे अगर आपके कोचेस हैं या अगर ऐसे आपके गुरु हैं तो फिर आपका डायरेक्शन भी वैसा ही होगा। हम्म, ठीक है। ये हम समझे नहीं लास्ट वाला बात आपका कि। ये कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं स्लाई कमेंट था, इसको हम ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। है हम्म, एक आध ऐसे नहीं कोचेस मतलब हैं। सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई कोचेस है जो पैशन के अराउंड काम हाँ हाँ करवाना चाह रहे, तो हाँ। आप भी तो यही बोल रहे हैं ना कि पैशन के अराउंड ही होना चाहिए काम, तो दोनों तो सेम ही बोल रहे बात। फर्क ये है कि हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपका पैशन कहाँ पर है हम्म। उसको आइडेंटिफाई करो, उसको क्लियरली समझो, उसको अच्छे से। एक सिंपल चीज है, हम्म। किसी भी चीज को अपना पैशन बना के उससे पैसे कमाओ, या अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवर करने का प्रॉमिस रखो, ये दोनों में फर्क है। हम्म। ऐसे भी कोचेस हैं जो आपको बोलेंगे कि आप कोई भी चीज को लेकर आ जाओ, मैं उसको आपका पैशन बना के उसके साथ आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा। ओके। इस सेंस में कि पैशन क्रिएट किया जा रहा है, मतलब पैशन है नहीं, बस हम मान रहे कि ये मेरा पैशन है क्योंकि इसमें हमको पैसा मिल रहा है। पैसा, पैशन, इसीलिए लगता है कुछ हाँ रिलेटेड हो रहा है। एक्चुअली हम पैशन की बात करते हैं, वो लोग पैसन की बात करते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा पैशन कि आपका कोई अपना एक्चुअल वाला पैशन होना चाहिए कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले हाँ या निश सेलेक्ट करने से पहले, हाँ हाँ। ओवरऑल जो भी है। अब दूसरा क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, पर्सनल हम्म। एक्सपीरियंस हो गया, ये सब भी इंक्लूड होना चाहिए क्या उसमें कि उसके बारे में आपको मिनिमम पढ़ाई करना है या फिर ये सब भी इंक्लूड रखना है क्या? और अब क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए हम लोग को निश सेलेक्ट करते समय? मैं सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखता हूँ, क्या है? आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो आप डिलीवर कर पाओगे। फिर भले वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, हम्म। भले फिर वो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से आया है, हम्म। फिर भले वो आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस से आया है, डजेंट मैटर। आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो आप उसके लिए क्रेडिबल होने चाहिए, आपने वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए, आपके आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में कि आपने आपके क्लाइंट्स ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है उनके लाइफ में कि अब आप वो कॉन्फिडेंटली किसी और को सिखा सकते हो। देन इट डजेंट मैटर। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, हम्म।
Can somebody be a divorce coach? Divorce from your partner amicably, deal with the entire concept of separation from your partner without causing a lot of conflict. कोई ऐसा कोच बन सकता है अगर उसका लाइफ में डिवोर्स नहीं हुआ है तो? क्यों नहीं? मतलब अगर करेक्ट, वो पढ़ाई पढ़ाई किया है उसी चीज पे, तो उसका खुद का डिवोर्स होना जरूरी थोड़ी है। करेक्ट। तो ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे या एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम्म। वो डिवोर्स कोचिंग कर सकता है। हम्म। एक और कैटेगरी होगी जो हो सकता है भले इंसान एक कोडर हो या सेल्स के जॉब में हो या एक एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी इंसान हो, हम्म। एंड देव गॉन थ्रू अ डिवोर्स, तो क्या वो भी डिवोर्स कोचिंग कर सकता है? कर सकता है बिल्कुल। You either need a personal experience or you need your educational experience or a qualification or your work experience, which gives you the confidence to communicate and make promises to your customer, which your customer will relate to. ओके, और इसमें गॉट इट। तो मतलब आप बोल रहे हो कि दोनों में से कुछ कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, चाहे पढ़ आपको लिख कर प्रॉब्लम आए, सॉल्व करने आना चाहिए। बस, चाहे कैसे हाँ, भी आए, पर्सनल एक एक्सपीरियंस है किसी से सीख कर आए। एक ऐसा एग्जाम्पल भी देता हूं जहां पे किसी के पास एक्सपीरियंस है ही नहीं हम्म। पर्सनल या वर्क एक्स या एजुकेशन के हिसाब से, बट येट दे कैन बी एक्सेलेंट कोचेस. What if I am a weight loss coach and I have never been overweight, हम्म। but I have experience in helping hundreds of people lose weight? यस। So three categories. One, मैंने सिर्फ पढ़ाई की है और मैं अपने एजुकेशन के हिसाब से आपको बताऊंगा आप अपना वेट कैसे लूज कर सकते हो. ठीक है। दूसरा है, मैं पहले बहुत हैवी था, मैंने समझा है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लॉस को, फूड को, न्यूट्रिशन को, एक्सरसाइज को, मैंने खुद अपना वेट कम किया है, उसके बेसिस पे मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं भी आपको वेट लॉस के लिए हेल्प कर सकता हूँ. हम्म। तीसरी कैटेगरी है, मैं हमेशा से हेल्थ को लेके पैशनेट था, ओके। मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे आके वेट लॉस करूंगा, लेकिन मैं हमेशा से हेल्थ को लेके पैशनेट था, मैं हमेशा से एक्सरसाइज में था, मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था, मैं कभी ओवरवेट हुआ ही नहीं. ओके। लेकिन क्योंकि मैंने 20 सालों से अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, अगर मैं एकदम परफेक्टली फिट हूं, मेरा बॉडी मास एकदम करेक्ट है, मेरा फैट परसेंटेज कम है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी की सारी चीजें मैं इतना इजीली कर लेता हूं बिना किसी भी तरह के प्रेशर के, और हम्म। यही चीज अगर मैं आपको सिखा सकता हूं, तो हाउ डज इट मैटर अगर मैं कभी मोटा नहीं था और मैं कभी वेट लॉस नहीं किया या मेरे पास साइंटिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है? How will I help you lose weight? I will make you run. I will make you play games. I will make you work in group activities. And I will help you how to change your relationship with food. And all of this is also going to help you lose anywhere between 5 to 10 kgs, which is not a very big deal. गॉट इट। तो हो गया. कहीं ना कहीं आपको वो चीज आना चाहिए, अगर ये हाँ, फैक्ट क्लियर हो रहा है तो आप इस बिजनेस पे आ सकते हो। आपको फिर तो इस बिजनेस में आना ही चाहिए इन अ वे, बिकॉज अगर आपको वो चीज आती है, यू एंजॉय डूइंग दिस, देयर इज पैशन अराउंड इट, हम्म। ओके, यू विल ऑटोमेटिकली एंजॉय डूइंग दिस अ लॉट. गॉट इट। ठीक है। तो अब हमारे लिस्ट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मार्केट साइज अगर बहुत ज्यादा हम लोग छोटा कर दे रहे हैं, यानी अगर बहुत नैरो चले जाते हैं निश पे, और उससे मार्केट साइज भी छोटा हो ही जा रहा है अपने आप, तो स्टार्टिंग में हमेशा ही लगता है, हम हमको भी लगता था, मे बी आपको भी लगता हो स्टार्टिंग में जब नए नए चालू कर रहे थे सब कोई, कि सिर्फ कोचेस के साथ पंकज काम कर रहा है। अभी जैसा कि हम लोग डिस्कस किया, आप हम मेरे लिए बता रहे कि मैं कंसल्टेंट्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, दूसरों के साथ भी काम कर सकता हूँ, सेम प्रॉब्लम मैं दूसरों के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ सेम प्रोडक्ट से, बट मैं स्टिल कोचेस रख रखा हूँ। और मे बी अगर मैं कल जाके बोल देता हूँ सिर्फ ऐसे कोचेस जिनका जो बैंगलोर में है और उनका इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, तो उसको और नैरो डाउन कर दिया, तो क्या बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर देंगे तो फिर बेकार चीजें नुकसान हो जाएगा, करना ही नहीं चाहिए, या फिर कर सकते हैं? इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है एक्चुअली. अभी जब आप बात कर रहे थे, इन दिस कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ ही मेरे दिमाग में चल रहा था, हम्म। और इसका आंसर समझने के लिए ना, ये जो भी सुन रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू फिगर आउट द नीश,
This is actually your exercise. Depending on your target customer and the problem that you're solving, and most importantly, your ticket size. Your ticket size is actually what determines how narrow you should go. Example. If your product is very economical, your market size should be very, very, very high. ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने वैल्यू लैडर में इनवाइट कर सको. ओके, सो वो वॉल्यूम गेम हो गया कि वॉल्यूम पे हम लोग खेल रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टू व्हीलर्स बेच रहे हो, स्कूटी या अपना मोटर बाइक्स या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा होगा. बिकॉज इट हैज टुडे बिकम अ कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट, you will have to sell at least 4 or 5 two wheelers every day to create a sustainable business. To sell 5, you will have to talk to 40 to 50 customers every day, at least 20 minimum. But what if you are selling very high residential and commercial plots? Okay. Very high value. Like the plot value will run anywhere between 50 to 100 crores per plot. In the entire year, you may have to meet only 20 people. So your ticket size, your market, the problem that you are solving, your target customer determines what kind of narrow down you have to do in your business. Okay. So इसका एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा हम लोग को. हाँ, मतलब और ये परफेक्ट बैलेंस आपको नीश में ही मिलेगा. अगर आप सपोज मैं वेल्थ मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मैं वेल्थ मैनेजमेंट किसके लिए कर रहा हूँ? एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 5 लाख रुपया महीना है, या मैं वेल्थ मैनेजमेंट उसके लिए कर रहा हूँ जिसका ओवरऑल फैमिली कॉर्पस 500 करोड़ है. टेक्निकली नॉलेज सिमिलर चाहिए, टेक्निकली सर्विस भी सिमिलर है, लेकिन सर्विस की डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क है. यस. जैसे कि अगर आप मास मार्केट को आप पकड़ रहे हो, निश आप सभी को सिखा रहे हो, फर्स्ट कैटेगरी जो प्रोफेशनल है, सैलरीड क्लास है, 5 लाख कमा रहे, मतलब कुछ भी कमा रहे, 50,000 भी कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, स्टार्टर्स है अच्छे लेवल पे, तो उनको आप में भी कोचिंग दे सकते हो जो थोड़ा सस्ता रहे कंपैरेटिवली. बट वही अगर आप 500 करोड़ वाला बात करें तो उनके लिए मतलब एक ग्रुप कोचिंग टाइप का चीज आप नहीं दे सकते हो. उनको आप अलग ही चीज दे रहे हो जिसके लिए आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो. मे बी आप अपना पर्सनल टाइम दे रहे हो, उनको 1-to-1 कंसल्टेशन दे रहे हो, उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेज कर दे रहे हो पूरा का पूरा. करेक्ट. तो उसके लिए आप मे बी 1 करोड़ रुपए ले लिए कंसल्टेशन फी, क्योंकि उनका 500 करोड़ का मैनेज कर रहे हो. आप उनसे 1 करोड़ रुपया सिर्फ फर्स्ट इनविटेशन मीटिंग फी भी ले सकते हो, और वो अगर आपके ब्रांड में इतनी वैल्यू है तो देंगे भी. तो उस केस में आपको जरूरत नहीं है बहुत सारे कस्टमर्स का. आप लिमिटेड कस्टमर्स के साथ काम करके 10 करोड़ पर मंथ कमा सकते हो, वर्सेस पहला कैटेगरी में आपको हजारों हजार कस्टमर्स चाहिए 10 करोड़ कमाने का. तो मतलब दोनों तरीका चलता है. मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ हाई टिकट करो, सिर्फ या लो टिकट करो. टेल यू कहाँ पे तकलीफ हो जाती है. हाँ. एज अ न्यू कमर, without having created your credibility, without having created your brand, without having created a very big case study database for yourself, trying to sell high ticket is going to kill you. Yes. अगर हो जाता तो बहुत अच्छा, बट हो नहीं पाता रियलिटी में. नहीं होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि एक सिंपल चीज समझ लो. Yes. The kind of family that I come from, I am fortunate enough and privileged enough to get services only from the better brands. ठीक है ना. तो आज अगर कोई नया ब्रांड आता भी है, जब तक मैं नहीं समझता हूं कि उस ब्रांड का थॉट प्रोसेस क्या. अच्छा, एक इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, एकदम सिंपल लेवल की बात करते हैं. आज की तारीख में मेरे लिंक्डइन और पर्सनल इनबॉक्स में कम से कम दिन के 10 ये आते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी मैसेजेस. Hello, I am ABC. This is the service that I'm providing. I would like to connect with you for a 30-minute one-to-one meeting. ठीक है. मैं समझ लीजिए 100 में से सिर्फ एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ. Okay.
क्योंकि जो बाकी के 99 है ना, उनका बात करने का तरीका, द लैंग्वेज दैट दे आर यूजिंग, द ग्रामर, द अप्रोच, हम्म द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे अंडरस्टैंड अबाउट मी एंड माई बिजनेस, वो काफी हद तक समझ में आ जाता है। तो जितना आप हायर लेवल पे जाते रहते हो, आपका नॉलेज बेस, आपका एनालिसिस, आपका लोगों को पढ़ने का तरीका, आपको लोगों को समझने का तरीका, आपको सेल्समैनशिप, कौन आपको एक्चुअल वैल्यू दे रहा है और कौन आपके साथ सेल्समैनशिप कर रहा है, ये सब आपको समझ में आने लगता है। करेक्ट तो जो हाई टिकट कस्टमर है ना, उसका अप्रोच बहुत अलग होता है। ओके जैसे हमने भी मैंने लाखों रुपए की कोचिंग सर्विसेज ली है। हम्म मेरा अप्रोच 5,000 रुपए वाली सर्विस के लिए भी सेम होता है, 5 लाख रुपए वाली सर्विस के लिए भी सेम होता है, क्योंकि मैं वैल्यू को देखता हूँ। ओके मैं 5 लाख रुपए में से टोटल रिटर्न कितना कमाऊंगा, हम्म मैं 5,000 रुपया किस चीज के लिए दे रहा हूं। हम्म मेरा माइंडसेट उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सिमिलर है, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जो 5,000 के लिए उनका अप्रोच अलग होगा, और 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट को तो देखकर ही वो बोलेंगे नहीं यार, ये मेरे लिए है ही नहीं। ओके क्योंकि वो फिर आपके कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपको वो कस्टमर का माइंडसेट पता होना चाहिए। उसके लिए आपको आपका मनी माइंडसेट पता होना चाहिए। उसके लिए आपके पास उतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हम्म ठीक है। तो ये उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे आप बोल रहे 5,000 वाला, जैसे आप प्रोडक्ट देख रहे हो 5,000 का भी और 5 लाख का भी प्रोडक्ट देख रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ज्यादा पैसा देखकर हट जाते हैं कि वो हाँ। कस्टमर्स को आप लूज कर रहे हो। हम्म। उल्टा भी तो हो सकता है, जो बहुत, जैसे मिसकंसेप्शन है ये सही है पता नहीं, जैसे 100% सही है कि महंगा है तो अच्छा है। हाँ महंगा है तो अच्छा है, तो वो लोग सिर्फ महंगा वाला चीज पे ही आके लेते हैं। पांच और हजार वाला को ट्राई ही नहीं करना कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना लो टिकट वाला, धीरे 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 जाऊं, मुझे उनको डायरेक्ट एक हमारा सर्विस दो। उनको हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहिए, जहाँ पे हम प्रोडक्ट और ऑफर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ओके आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाना, हम्म आपको एक ऑफर भी वैसा क्रिएट करना है। अगर आप your 5,000 rupee product and your 50,000 rupee product can be exactly the same, हम्म but your offer will be very different. यस Your product delivery will be very different. The यस add-ons will be very different. Your bonuses will be very different. यस। सो मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट में हम लोग क्या क्या लोगों को बताने वाले नेक्स्ट हाँ, पॉडकास्ट में। प्लीज। यस। सो निश से रिलेटेड तो हमारा सभी बात हो ही गया ना, मतलब कि फाइनल क्या लग रहा है कि निश रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। फाइनल आप इसको एक बार निश के बारे में आप कंक्लूजन दो, फिर मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। एक चीज शायद बची हुई है हमारी, डज क्या? niche allow you to sell at a premium? हाँ यही तो अभी हम लोग बात कर लिए ना, एक तरह से हाँ। काइंड ऑफ। हाँ, but niche is actually the only thing that will allow you to sell at a premium. Your niche, when added with experience, when added with case studies, when added with testimonials, when added with your conviction, your confidence, your past experience, will allow you to sell at a premium. But if you don't have 100% clarity on your niche, you will not be able to come to these other factors which are important. करेक्ट। तो फिर अगर इसका बात हम लोग कर ही रहे तो फिर क्या आप ये बोल रहे हो कि अगर निश हम लोग रखते तो हम लोग हाई टिकट बेच सकते हैं? आप हाई टिकट बेच ही नहीं सकते जब तक आपके पास नीश नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके हम्म हाई टिकट, अल्ट्रा हाई टिकट बेचने के लिए नीश होना बहुत जरूरी है, और वहां पे तो जितना ज्यादा नैरो कर सको उतना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। जैसे कि आप रियल एस्टेट का वो जो हम लोग वेल्थ का एग्जांपल ले रहे थे, एक तो हाँ। क्या प्रोफेशनल्स को सिखा रहे हैं, और या फिर एक उनको सर्विस दे रहे हैं हम लोग जो 500 करोड़ नेटवर्थ है, उन लोग को हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ, वहां से प्रीमियम ऑटोमेटिकली चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आप उनको तो इसका मैं एकदम परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही एग्जांपल लेके। ठीक है। I come from business background. I have been a profitable equity investor for the past 12-15 years now. I हम्म have helped multiple people create profitable equity investment portfolios. ठीक हम्म है? I am an MBA in finance. I understand money. I understand all asset classes very, very, very well. ओके I can answer all your questions with regards to your retail investment related questions. हम्म ठीक है? शार्क टैंक जैसा जब टीवी सीरीज चल रहा है, इसमें एक वर्ड ऐसा नहीं होता जो मुझे नहीं समझ में आता है, लिटरली एक वर्ड। हम्म ठीक है?
तो इतना पर्सपेक्टिव होने के बाद मैं, मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस, मैं किसको हेल्प कर सकता हूं? उन लोगों तक को जिनका पोर्टफोलियो साइज 5 करोड़ के आसपास तक का है, हम्म पोर्टफोलियो नेटवर्थ 25 करोड़ के आसपास तक का है। हम्म उतना कॉन्फिडेंस आज मेरे अंदर है। ठीक है 50 करोड़ का नेटवर्थ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे समझना पड़ेगा एज अ कस्टमर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म इफ यू आर टेलिंग मी दैट यू वांट टू गो क्रिप्टो हैवी, आई विल से सॉरी। इफ यू टेल मी यू वांट टू गो रियल एस्टेट हैवी, 50 करोड़ भी मैं देख लूंगा। हम्म 100 करोड़ रियल एस्टेट में अब मैं पीछे हटना चालू करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास उतना कन्विक्शन नहीं है। 50 करोड़ की गेम बहुत अलग होती है 100 करोड़ की गेम से, भले गेम 100% सेम है। हम्म जो हम लोग बात कर रहे थे कि टेक्निकल चीज सबके लिए सेम है, हाँ, स्किल टेक्निकल सब चीजें सेम है। 100%। टेक्निकली 5 करोड़ के लिए, 50 करोड़ के लिए, 100 करोड़ के लिए और 1000 करोड़ के लिए, अगर किसी को सिर्फ एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही अपना वेल्थ कमाना है, हम्म कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है फिर? आपके एक्सपीरियंस में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके कन्विक्शन में। ओके जो 100 करोड़ और 1000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा ना, उसका काम करने का तरीका भी बहुत अलग होगा। हम्म जिसको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स करना है रियल एस्टेट में, हम्म वो मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मनीष तुम मुझे मुंबई में जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज है सब बताओ। हम्म वो क्लियरली मुझे बोलेगा इंडिया की टीयर 2 सिटीज में टॉप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस कितने बन रहे हैं और मुझे उनमें से टॉप 3 में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनका आरओआई क्या होगा, मुझे उसके ऊपर कितने साल में एग्जिट मिलेगा और क्या परसेंटेज का, कितना परसेंट का प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मुझे उसका एनालिसिस चाहिए आधे घंटे में। ओके क्योंकि एक सिंपल चीज है, आप एक रोड साइड स्टॉल पे जाके एक ग्लास फ्रूट जूस मंगवाओ या हम्म एक 5 स्टार में जाके फ्रूट जूस मंगवाओ, क्या आपका एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट को लेकर 100% सेम होता है? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। एज अ कंज्यूमर खुद हाँ अपने आप को ही ले लो, प्रोडक्ट 100% सेम है, फ्रूट जूस, हम्म 1 ग्लास ऑरेंज जूस। लेकिन ये जो रोड साइड एक्सपीरियंस स्टॉल, एक्सपीरियंस मैटर करेगा दोनों में। और भी चीजें का बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म रोड साइड स्टॉल वाला जो है, वो आपको कभी ठंडा देगा, कभी गर्म देगा, क्वालिटी कभी बहुत खट्टा होगा, कभी बहुत ज्यादा शुगर डाल देगा। आप चला लोगे, यार 20 रुपए में क्या ही तो देगा। यस लेकिन उसी जूस का, उसी एक ग्लास जूस का अगर आप 1,500 रुपया दे रहे हो एक 5 स्टार होटल में बैठ के, हम्म अगर उसने थोड़े भी खट्टे ऑरेंजेस दे दिए, हम्म यू विल नॉट एक्सेप्ट इट एज द सेम प्रोडक्ट, एज द सेम कंज्यूमर। प्रोडक्ट में भी कोई फर्क नहीं है, हम्म लिटरली। ये रहा 5 स्टार का बिल्डिंग यहाँ पर, और ये रहा रोड साइड स्टॉल जो उस 5 स्टार से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, क्योंकि मुंबई में तो सब बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है ठीक है ना? उन दोनों का रॉ मटेरियल हो सकता है सेम स्टॉल से आया हो वाशी में, जो हम्म एपीएमसी मार्केट है वाशी का, हो सकता है उन दोनों का जो ऑरेंजेस हैं सेम एपीएमसी के स्टॉल से आया है। हाँ जूसर सिमिलर ही होगा, ठीक है, ये हैंड ब्लेंडिंग जूसर लेगा, हम्म 5 स्टार में होगा कोई इंटरनेशनल ब्रांड का कोई जूसर, हाँ ये भी आपको एक ग्लास में देगा, ये भी आपको एक ग्लास में देंगे। हम्म यहाँ पे जाके आपको लेना पड़ेगा वो स्टॉल वाले के हाथ से, यहाँ पे आके एक वेटर वाइट ग्लव्स में एक ट्रे पे लेकर आएगा आपका ग्लास, एक पहले कोस्टर रखेगा, उसके ऊपर आपका ग्लास रखेगा, फिर उसके ऊपर आपको और छोटे मोटे अकम्पनीमेंट्स देगा, लेकिन प्रोडक्ट 100% सेम है। लेकिन आप भी सेम हो, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन रोड साइड स्टॉल से लेके एक 5 स्टार में बैठकर सेम प्रोडक्ट का आपका एक्सपेक्टेशन पूरा बदल जाता है। हम्म तो अगर आपका एज अ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फॉर अ 20 रुपीज टू अ 200 रुपी प्रोडक्ट, हम्म फॉर अ 2000 रुपी प्रोडक्ट अगर चेंज हो जाता है, तो जो भाई साहब 100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मुझे मैनेज करने को देने वाला है, उसका क्यों चेंज नहीं होगा? गॉट इट एंड अगर मैं 100 करोड़ वाले के पास चला जाऊं और मैं उसको, सर मैं आपके 100 करोड़ को 200 करोड़ रुपया बना दूंगा, सबसे पहले तो वो मुझे देख के हंसेगा। हम्म क्योंकि उसको पता है भाई अगर मैंने 100 करोड़ कमाया ना, तो 200 करोड़ मैं भी कमा लूंगा, 100 को 200 मैं भी बना लूंगा।
हम्म तो तू मेरे पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। तू मुझे बता कैसे करेगा, हम्म तेरा एक्सपर्टीज क्या है, तेरा डोमेन नॉलेज क्या है, मैं क्यों तेरे पे भरोसा करूं, मैं तेरी बात ही क्यों सुनूं, तेरा एलिवेटर पिच क्या है। ओके Are you going to do it via real estate? Are you going to help me expand my business? Are you going to help me get into passive sources of income? Are you going to help me in alternative investments? Are you going to help me figure out companies which are in the greenfield sector and the brownfield sector so that I can start investing in those companies so that I can get a much higher return on portfolio? What are you going to do? Don't tell me you will convert 100 to 200. I can also do that. Tell me what will you do and why should I even listen to you? हम्म So वहां पे मैं खुद बोल रहा हूँ, although I understand the necessity of the 100 crore customer also, हम्म but I don't feel I'm confident enough yet. ओके लेकिन ये 100 करोड़ वाला पोर्टफोलियो वाला बंदा, सपोज अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल होता, अगर मैं बिजनेस में हम्म नहीं होता, अगर ये मुझे बोलता मनीष मैं 100 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करने वाला हूं एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टीम मेंबर, हम्म तो मैं शायद उसके जॉब के लिए अप्लाई कर लेता। उतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास, बिकॉज देन आई वुड ओके नॉट बी द डिसीजन मेकर। एट द मोमेंट 50 करोड़ तक का पोर्टफोलियो में आराम से डिसीजन बना लूं और मेरे क्लाइंट के साथ बात करके उसको आई डील विद इट। ये मेरा पर्सनल माइंड ब्लॉक है एट द मोमेंट, क्योंकि 50 करोड़ भी किसी भी एंगल से छोटा अमाउंट नहीं होता, काफी डिसेंट अमाउंट होता है। ऑफ कोर्स 100 करोड़ में गेम चेंज हो जाती है। तो अगर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम्म लेकिन नीश नहीं होता तो मैं वो 50 करोड़ वाले के साथ भी बात नहीं कर पाता। ओके गॉट इट। तो मतलब आप बोल रहे हो कि नीश रखना जरूरी है हर जगह। और आप क्या बता रहे थे इससे, ये शायद मैंने मिस कर दिया कि डज इसका नीश समरी अलाउ यू क्या टू है। सेल एट अ प्रीमियम? ओके तो यू कांट सेल प्रीमियम विदाउट अ नीश। ओके ओके करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो मैं बोल रहा था कि आप बता रहे थे कि नहीं, यू कांट सेल अ प्रीमियम विदाउट अ निश। हाँ। उल्टा भले हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। आप बिना नीश के पैसा कमा सकते हो। हम्म लेकिन ज्यादा पैसा कमाना है तो निश होना ही जरूरी है। 100% जरूरी है। एक सिंपल, हम्म एक जनरल फिजिशियन ज्यादा पैसा कमाता है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने 1000 सर्जरीज की हुई है, वो ज्यादा पैसा कमाता है। जनरली जो एक्सपर्ट रहेंगे वही ज्यादा कमाएंगे। उनका भी एक कैटेगरी है क्योंकि वो क्रिटिकल काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली काफी ज्यादा क्रिटिकल है हार्ट सर्जरी इसका वर्सेस। एक जोक है जो मैंने बहुत बार रीड किया है। क्या है। एक सर्जन की गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। और इन मिडल ऑफ नोवेयर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसको मुश्किल से एक मैकेनिक मिलता है, हम्म ठीक है। और वो मैकेनिक कार को अपना बॉनेट खोलता है और जो भी उसको ठीक करना होता है वो ठीक कर लेता है। कोई पर्टिकुलर इंजन का कोई स्क्रू या वॉल्व थोड़ा लूज हो गया था, वो उसको टाइट करता है और बोलता है कि आप ये कर लो, अपना क्या बोलते हैं, कार स्टार्ट करो। डॉक्टर कार स्टार्ट करता है और कार स्टार्ट हो जाती है। हम्म और मैकेनिक अब ऐसे ईगो में आके स्माइल करके डॉक्टर को बोलता है, देखा मैंने आपके कार के, आप हार्ट सर्जन हो, आप हार्ट के ऊपर काम करते हो, मैंने आपके कार के हार्ट के ऊपर काम करके आपके कार के हार्ट को ठीक कर दिया। हम्म वो सही बोला। सर्जन, हाँ, सही बोला वो भी। सर्जन स्माइल करता है और उसको बोलता है, अब इमेजिन करो इस हार्ट को ठीक करना जब आपकी इंजन चल रही है। हम्म अ हार्ट सर्जन does an operation on the most one of the most critical parts of your body while it is still in 100% functioning stage. हाँ कि वो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा का पूरा कार ही खराब हो जाएगा। तो मैकेनिक परमानेंट। तो मैकेनिक का भी नीश है कि वो उस कार के हार्ट को, इंजन को पूरा अच्छे से समझता है। इसके लिए वो उस इंजन को हाथ लगाने के पहले डरता भी नहीं है। हम्म एक नौसिखिया मैकेनिक एक बहुत महंगी कार के बॉनेट को खोलने से भी डरेगा, होता है, बहुत जगह होता है। ठीक है ना। हम्म और एक हार्ट सर्जन एक धड़कते हुए दिल को, एक धड़कते हुए दिल के इंसान की बॉडी को चीर कर उसके हार्ट को ऑपरेट करने के पहले भी नहीं डरता है, हम्म क्योंकि उसके पास वो नीश है, उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है, उसके पास वो एक्सपर्टीज है, उसके पास वो कॉन्फिडेंस है, उसके पास वो कन्विक्शन है, उसके पास वो पैशन है कि हाँ
मैं अपना 100% देकर इस इंसान की जान को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जब मेरा काम खत्म हो तब इस इंसान की लाइफ बढ़े। लेकिन अगर ये डॉक्टर, ये सर्जन बिना पैशन के उस हार्ट का ऑपरेशन करेगा, सबसे पहली बात तो उस लेवल तक पहुंचेगा ये मुश्किल है, हम्म क्योंकि हार्ट सर्जन बनना, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास वो पैशन है, तब आप वहां पे पैसों के हिसाब से नहीं सोचोगे, हम्म तब आप किसी की जान के बारे में सोचोगे, तब आप उस हम्म पेशेंट की फैमिली के बारे में सोचोगे, तब आप उस पेशेंट के वेलबींग के बारे में सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि अगर मैं इधर और आधा घंटा रुक गया तो मेरे को 2 लाख रुपए और मिलेगा उस आधे घंटे का, नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको पैसों को लेके। यस। तो बिना पैशन के नीश मत बनाओ, और बिना नीश के तो बिजनेस बनाओ ही मत, बिकॉज आप पैसे कमा ही नहीं पाओगे प्रीमियम। यस। सो नीश, यू डोंट, यू कांट मेक अ प्रीमियम विदाउट अ नीश। ये मेरा बॉटम लाइन है आज का, लाइक इम्पॉसिबल है। ग्रेट। ठीक है। और क्योंकि हम लोग लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे, आपसे हमेशा कुछ रिसोर्स लिया करेंगे, अब बहुत अच्छा, हाँ सीरीज वगैरह देखते हो, तो हाँ। नीश से रिलेटेड आप क्या दोगे? ई बुक दोगे, किसी को सिखाओगे, या फिर सीरीज दोगे, मूवीज रिलेटेड, दोगे? नीश के रिलेटेड मैं शायद एक मूवी दे सकता हूँ, बिकॉज नीश है ना, नीश इज एक्चुअली टू फिगर आउट योर पैशन। हम्म वंस यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरे दिल से आवाज आ रही है कि मुझे यही करना है, हम्म तो फिर उसमें आप अपना जब मेहनत करते हो और आप जब अपना दिमाग लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप कैसे एक्सपैंड करते हो, कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती रहती है, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। बट आई एम नाउ ट्राइंग टू थिंक हाउ डू आई रिकमेंड दिस, हाउ हैव आई लर्नड अबाउट दिस। मतलब हम लोग को सीखना है कि पैशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बता, सिर्फ देखिए हर इंसान का पैशन कैसे फाइंड आउट करने का तरीका अलग होता है। तो उसके लिए आप रिसोर्स दे दो ना उनको। मैं वही बता रहा हूँ, आई विल टेल यू वन बुक दैट हैज हेल्प मी understand the importance of passion, understanding the importance of a vision, understanding the importance of following one thing that makes you very 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 happy. हम्म इस बुक का मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक आदमी एक पर्टिकुलर बिजनेस में काम करना शुरू करता है। हम्म ये जो बिजनेस है ये बेसिकली ट्रेडर्स थे, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रेड करते थे और उससे वो पैसा कमाते थे। हम्म इनके वेंडर्स थे इंटरनेशनल कंट्रीज में। So this particular person who was working in that trading house goes to an international country to talk to the vendors, and he discovers an end product which can be used with the raw material that these guys were selling. ओके। Let's say you're selling semiconductors or microchips. हम्म He goes to an international country and discovers, oh, we are only trading in microchips, whereas we can make keyboards, we can make mouse, we can make laptops, we can make cell phones. हम्म And he now gets passionate about the end product. हम्म He comes back to his company and requests the founders, let us please start a different business, or let's expand our business and get into the business of selling finished products. ओके। But these people, the original founders, they were absolutely not interested. They were traders and they did not want to get into the finished product business. This person, who was the working professional, got so irritated because he saw a very, very, very big opportunity. हम्म He got so frustrated, he started a different company where he was dealing in finished products. A few years later, these two founders had to sell their company. ओके। The working professional ended up buying the brand because that brand had good value and he liked that brand. He wanted to be associated and he did not want that brand to die. He bought over this company, and that this company today sells only finished product. So the company, which was originally started as a trading house, is today an experiential product business, and it has thousands and thousands and thousands of experience centers all across the world. ओके। My introduction to the world of passion in business happened through this book.
ओके। The business that I'm talking about is Starbucks. Howard Schultz, the ex-CEO of the company, he started working for Starbucks coffee trading house, where he was just trading. The company was originally trading coffee. He went to Italy and he experienced a cafe for the first time, the Italian coffee shop for the first time, where people would come, have an espresso, have a cappuccino, have a latte. And he wanted to bring this experience back to the US. He told the founders of Starbucks, please let's start cafes. We have the best coffee beans. We have the best of everything. We also have the money. Why don't we start Starbucks cafe? The founders were not interested. He left the company. He started a cafe. A few years later, the founders had to sell the company. Howard Schultz bought Starbucks as a brand. And today, Starbucks does not sell coffee as a trading house. Starbucks is a coffee experience center all across the world. I personally understood the power of passion in business when I read this book called Pour Your Heart Into It. I'll obviously share the link in the description below. And multiple other experiences that Starbucks has gone through to be the brand that it is. And I read this book easily about 15 years ago. आज तब तक तो मुझे सेमिनार्स एंड कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था. एंड आई एम हैप्पी कि आप मेरे को ऐसे स्पॉट में डाल देते हो, क्योंकि when you put me in a spot, I will come up with these things because मैंने इतना content, books, movies, TV series, YouTube videos, podcast consume किया है ना, it comes to me. यस, आज भी ये बुक काफी वैलिड लग रहा है, खास करके हमारे टॉपिक के लिए. Oh, you will understand how to sell at a premium. You will understand how to design a vision. You will understand how to figure out a large target market for yourself. You will understand how to create a product or a service in such a way that you can cater to your right target audience. जहां पे यूएस में कॉफी कहाँ मिलती थी? डंकिन डोनट्स में. आप जाते थे, $1 में आपको डोनट एंड कॉफी मिलती थी, या $1 का डोनट और $1 की कॉफी मिलती थी. वहां पे स्टारबक्स ने $3 की सिर्फ कॉफी बेचना चालू किया. प्रीमियम. यस, बिकॉज दे वर नॉट सेलिंग कॉफी, दे वर सेलिंग द एक्सपीरियंस. छोटी छोटी चीज है. हाउ डू यू डिजाइन कस्टमर एक्सपीरियंस? हाउ डू यू डिजाइन अ स्टोर? You go to Starbucks and they'll call you out with your name. If you're going to the same store over and over again, and how do you design a culture? That book is fabulous. Matlab, I think every person who's passionate about business, who's passionate about work culture, HR, who is passionate about creating a product must read this book. And I clearly read it more than 15 years ago. मुझे भी वो पढ़ना पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड बहुत अच्छा द बिगेस्ट टेक अवे व्हिच आई थिंक मुझे मिला है अभी इस स्टोरी से, जो अभी जितना आप बताए, खाली कि लोगों को डरना नहीं है. कुछ भी लेकर एक बार चालू करो, बाद में चेंज किया जा सकता है. आई वुड से फेलियर को लेकर डरना नहीं है. डरो, क्योंकि जब डरोगे ना तो एटलीस्ट यू विल टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स. यस, बट उसके वजह से रुकना नहीं है. फेलियर को लेके मत डरो, बिकॉज फेलियर इज एनीवे नॉट इन योर कंट्रोल. यस, सो व्हेन यू आर टेकिंग कैलकुलेटेड, क्या होता है ना, एक अंधाधुन रिस्क लेना होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है. अगर आपके पास 2,000 रुपए हैं तो 20 रुपए को लेके मत डरो. एक बार के लिए 200 रुपए को लेके भी मत डरो, बिकॉज यू स्टिल हैव 90% ऑफ योर कॉर्पस इन योर हैंड. यस, लेकिन अगर डरना नहीं है, ये सोच के अगर आपने 2,000 रुपए एक ही घोड़े पे डाल दिया, तो कहीं ना कहीं तो बेवकूफी हुई ना. यस, मैं उस सेंस में भी बात कर रहा था कि बहुत लोग क्या करते हैं कि नीश को लेकर अटक जाते हैं. एक सेकंड उधर ही से कर दीजिए दीदी आज. हाँ, या सो बहुत लोगों का क्या होता है कि निश सोचते सोचते ही अटक जाते हैं जिंदगी भर की. 1-2 महीना तक सोचते रहते कि ये निश बनाओ, वो निश बनाओ, और रिफाइन करो. कभी कभी ये 1 महीना 6 महीना भी चल जाता है, 2 साल भी चल जाता है. कुछ कुछ लोग आते हैं, मेरे को ऐसे लोग पता है जो 2 साल से अपनी नीश पे अटके हुए हैं. जहाँ की अगर वो कुछ एक एक चीज को लेकर, अगर एक हाइपोथेसिस को लेकर चालू कर देते हैं, तो हो सकता है अभी 2 साल में एक ब्रांड बन चुके होते हैं काफी अच्छा खासा.
तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे कि कैसे फटाफट चालू करें? मैं उनको रेकमेंड करूंगा तुम मत चालू करो यार। तुम जो चीज को लेके 2 साल से अटके हुए हो ना, यू हाँ। नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. Because if you are passionate about something, if you know that this is going to work for you, if you know why you are making the decision that you are making, you don't need anybody else to convince you. ये बहुत रिसेंटली मैंने कहीं तो सुना है, वेट आई वुड वांट टू गिव क्रेडिट. आई थिंक 99% इलॉन मस्क ने बोला, ओके। if you need motivation to become an entrepreneur, you should not become an entrepreneur. एक तो मोटिवेशन का भी होता है, दूसरा ये भी होता है ना कि वो सोचते हैं कि परफेक्ट निश कैसे लाए। Same. If you are thriving or if you are waiting for the perfect niche to come to you, you should not wait. तो You should be बेसिकली in some other business. ओके। सो बिकॉज ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, हम्म आपका एक्चुअल नीश आपके नाक के टिप पे, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यू रिफ्यूज टू सी इट, यू आर टू ईगोइस्टिक टू सी इट, यू आर फुल ऑफ योर एटीट्यूड टू सी इट. आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा किस में है, आपको पता है कि ये कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सारे के सारे आंसर्स दे सकते हो. फिर भी अगर आप सोचते हो यार मेरा नॉलेज इनफ नहीं है, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मैं कौन होता हूँ ये सब चीजों के बारे में बात करने वाला या सिखाने वाला, तो ये या तो आपका अंडर कॉन्फिडेंस है, या तो आपका ईगो है, या तो आपका एरोगेंस है, या तो आपकी इनसिक्योरिटी है. तो आप उसके ऊपर काम करो ना. आप क्यों किसी और को कोच करके अपना खुद के सर पे भी प्रेशर ले रहे हो? अपने आप पे काम करो, अपना कॉन्फिडेंस लेकर आओ, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट. करेक्ट। अगर उस चीज पे एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, तो उसको पता है कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो लेकर चालू कर दो, बाकी देखा जाएगा, रिफाइन करेक्ट. करते रहो कहाँ जा रहा है। But after one point of time, if you have answer to all of these questions, हम्म and if you are still scared, and if you're not ready to work on yourself, please don't become a coach. यस। क्योंकि एज अ मेरे को कोच लगता आपको है, बाकी लोगों को भी हेल्प करना होता है, नहीं तो वो भी अटकते रहेंगे और आप बोलेंगे ठीक है थोड़ा और टाइम लगा लो, और टाइम लगा लो। मेरे को लगता है कोच आई नीड हेल्प का एक बहुत बड़ा फोकस ये है दैट वी क्रिएट गुड कोचेस फॉर द कम्युनिटी. बट आई थिंक एक और बहुत बड़ा काम ये भी होना चाहिए दैट वी फिल्टर आउट पीपल हु प्रोबेबली आर नॉट मेड फॉर दिस इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स, मतलब जो या कुछ भी कारण से अटक रहे हो, या फिर बहुत लोग जो सिर्फ पैसे के लिए आना चाह रहे हैं, उनको पढ़ाना मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है, बस मुझे पैसे कमाना है इसलिए मैं कोचिंग में आ रहा हूँ। अगर आप उसके लिए आ रहे हो तो आओ, इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है. इस इंडस्ट्री के लोग ही आपको बाहर निकालेंगे. यार हमको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर्स को भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद निकल जाओगे. बिकॉज ये इंडस्ट्री बाहर से दिखने में जितनी मेक मनी क्विक है ना, अगर आप अच्छे से पैसा सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए कमाना चाहते हो, तो ये उतनी ही सिस्टमैटिक है, ये उतनी ही रिफाइंड है, ये उतनी. एंड ये है ना, एक सिंपल चीज है. व्हेन यू हैव इनफ गुड पीपल इन द सर्कल ना, bad people will not be able to compete with them in the long run. यस। इनफैक्ट रिसेंटली इसका रिसेंट एग्जांपल भी था, लाइक पेंडेमिक में हुआ था Hmm. 2020 में। Oh, सारा लोग कोचेस बन गए थे कि आई एम अ कोच, आई एम अ मोबाइल चलाना सिखाना वाला कोच, कि मैं सिखाऊंगा आपको मोबाइल कैसे चलाते हैं, मैं सिखाऊंगा फ्रूटी कैसे पीते हैं, मैं सिखाऊंगा कि पॉटी कैसे करते हैं, मैं सिखाऊंगा कि कीबोर्ड कैसे टाइप करते हैं फास्ट। कुछ भी जबरदस्ती बन रहे थे कोचेस, एंड फिर चले गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कि कहाँ है अभी। मैं वही बोल रहा हूँ ना. When you have, the good part is this industry already has a few good people. I would not say many, but definitely a sizable number of good people. With these number of good people now, with every good person joining our team, we are making it difficult for the bad coaches to remain in this industry. यस, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक आज का हमारा हाँ, आज एपिसोड मतलब काफी वैसे लंबा हो गया। लास्ट का एक डज नीश अलाउ यू टू सेल एट प्रीमियम ही अपने आप में एक एपिसोड बन गया. नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअल में, क्योंकि प्रीमियम हाई टिकट, ये आज का 2023 का बज़वर्ड चल रहा है, सारा कोचेस क्रिएट हो रहे कि हाउ टू सेल हाई टिकट, और उसके पीछे का साइंस कभी हाई टिकट बेचे नहीं, बट वो सिखा रहे लोगों को हाई हाउ टू सेल हाई टिकट।
मतलब वो अपने आप मतलब we should do one episode on high ticket sales because I think it is very important, and high ticket sales has very little to do with sales and has a lot to do with psychology. Very little to do with sales. यस, सो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम लोग करेंगे, एक एक करके पहले बेसिक्स कवर Of करेंगे, course, हाँ। फिर हर टॉपिक पे भी, मतलब जो आज हम लोग 10 टॉपिक बात करें, 10 का 10 पे की पॉडकास्ट बना आज देंगे। हमने इतना बात किया, एक भी बार लोगों को ना लाइक करने को बोला, ना सब्सक्राइब करने को बोला है, ना अभी तक एक कमेंट करने को बोला है। भाई अगर आप अब तक देख रहे हो, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल दिस पॉइंट, यस, एंड यू कैन नाउ रियलाइज, यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट डूइंग दिस पॉडकास्ट to gain millions of subscribers. I know we will get there eventually. I know we are going to add a lot of value not only to coaches but to every person who's actually running a business or wants to understand the whole mindset of money and business. But to if you're here till this moment now, if you've seen it in one go, if you've seen it in 5 parts, what you should understand is that you've definitely gotten a lot of value. For that, I really, really, really request you to press the like button, subscribe to the channel, which I'm hoping you've done already. Please leave a comment, because ask us your questions, give us your feedback, tell us what you like, tell us what you did not like, so that we can make a better product for you. And let me request you one thing. If you've reached till this point, and do you realize I don't even know, we've been talking for about what? Almost around 1 hour 45 minutes approx. This is probably going to be one of our longest episodes till date. If you are still here, I really request you to share this with people who you think will derive value out of it. All the entire video is also divided into chapters. So whatever chapter you feel is important, please share that chapter with people. Give them perspective. Tell them that, you know what, please watch itna minute ka content because you're going to learn something out of it. Please do that for us. And if you do that, I'll be ever, ever, ever grateful. Thank you so much. यस, एंड अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमेंट करूं क्या, किस बारे में कमेंट करूं, तो उसके लिए अगर कुछ एक वर्ड आप बोलना चाहोगे कि ये कमेंट कर दो अगर कुछ समझ में Just नहीं आ tell, रहा है तो। just tell us one thing that you really liked in this episode. What did you learn? Anything. Just tell us that one thing that made you watch till this moment. बिल्कुल, हाँ. वरना आप इतने देर तक वॉच करते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो आप नया सीखे Possibly ही नहीं है. आज। But you have no idea. Every person, at least for this episode, who comments, I am going to be so respectful to the whole concept, because I know in today's generation where you can't even watch an entire reel for 30 seconds because you get bored. If यस, you reach till this point now, you're bloody gold. यस, पूरा का पूरा मूवी जितना बड़ा हो गया, 1-2 आवर का, तो मतलब Which is काफी why I पेशेंस told है you, आप में। मेरे साथ अगर पॉडकास्ट करना है तो ये आधा घंटा 1 घंटे वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। मेरे को जो मन करेगा, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं बोलूंगा, बिकॉज बस ये खत्म करने के बाद में आई हैव एन एंटायर डे अहेड ऑफ मी। बट मैं इसको जितना टाइम दे रहा हूँ, मैं उसको 100% दे रहा हूँ आप, ताकि नीश एज अ टॉपिक के ऊपर हमें होपफुली और 2 साल तक आना ना पड़े, ये 2 साल 3 साल तक रेलेवेंट रहे। यस, 2 साल 3 साल क्यों, जैसे आप बता रही कि 15 साल पहले आप वो बुक पढ़े थे, वो हाँ, आज भी रिलेवेंट है, तो ये हाँ, टॉपिक बट तो हमेशा ही रिलेवेंट रह द सकता है ना। फनी पार्ट इज, वो वाला बुक कहाँ खत्म हुआ था? जहां पे स्टारबक्स हर दिन एक कैफे या 1 या 2 कैफे चालू कर रहा था वर्ल्ड वाइड, वो बुक वहां खत्म हुआ था। उस बुक का एक पार्ट 2 आया है, जहां पे स्टारबक्स अपने पीक पे पहुंच के ड्रॉप पे आने लगा था, विद द एंटायर 2008 क्राइसिस, विद जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो कल्चर चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हो, तो हर चीज का एक टाइम आता है। तो नीश का साइकिल भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। आज हम बोल रहे हैं ब्रॉड रखो, हो सकता है 2 साल के बाद में जब इतने सारे कोचेस आ जाएंगे तब ब्रॉड रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, तब पोजिशनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। यस, तो ये होने ही वाला है। हो सकता है इसके और 3 साल के बाद में, मतलब वो सेकंड एपिसोड के और 3 साल के बाद में, पोजिशनिंग नहीं, पहले ब्रांडिंग पे ध्यान दो, क्योंकि पोजिशनिंग, तुम्हारी पोजिशनिंग के साथ और 25 लोग होने वाले हैं। तुम्हारी ब्रांड कैसे तुमको स्टैंड आउट कराएगी, वो होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये चेंज होगा तब तक ये होगा, फंडामेंटल स्टिल सेम रहेंगे। पैशन आपका तभी भी जरूरी होगा, आपका कन्विक्शन तभी भी जरूरी होगा, आपका एक अच्छा इंसान होना तभी भी जरूरी होगा। यस। सो एक चीज यहाँ पे हम लोग को और ऑडियंस को सिखाने को मिल रहा है कि निश ऐसा भी सिलेक्ट करना है, अपना तो पैशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ये सब जो डिस्कस किए A to Z सारा कुछ होना चाहिए,
बट ऐसा भी रखना है जो आपको बाकी कंपटीशन से थोड़ा अलग करते हैं, मैं आपके मार्केट उसमें नहीं में थोड़ा मानता, कम कंपटीशन हो। मैं उसमें नहीं मानता। अगर इस मार्केट में और 100 मनी माइंडसेट कोचेस आ जाए, हम्म। वो भी किसी को अपना मनी ब्लॉक हटाने में हेल्प करे, वो भी किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प करे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता कंपटीशन से। हम्म। आपके पास जो ऑडियंस आने वाला, आपके पास जो कस्टमर आने वाला है, वो आपके पास आकर ही रहेगा। ओके, सो कंपटीशन, आप सोच रहे हो कि कंपटीशन हमारे लिए और हेल्दी है क्योंकि वो हमको और इम्प्रूव करने के लिए भी सिखाएगा। कंपटीशन मार्केट है, ओके। कस्टमर के पास भी चॉइस होनी चाहिए। अगर सोच लो कि आपकी लाइफ कैसी होगी कि आपको बोल दूं कि सिर्फ एक ही आप ब्रांड से आप कपड़े खरीद सकते हो, हाँ, कि अब फिर उसका तो मोनोपोली हो जाएगा, कुछ भी दे रहा है, लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बट लेकिन चॉइसेस है तो वो हम्म, सबको इम्प्रूव कर रहा है, हमको वो पसंद है, इसको ये पसंद है। यस। और क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, फिर भी आपके पास कोई कोई आपके पसंदीदा फेवरेट ब्रांड्स हैं। हम्म। तो यस। कंपटीशन में तो उल्टा अच्छी तरह से बिजनेस करने में और मजा आएगा। आओ और कंपटीशन आओ। यस, यस, एब्सोल्युटली। ठीक है मनीष जी, हाँ, तो आई होप ऑडियंस को अच्छा लग रहा है एंड कमेंट वगैरह दे दे। अगर अभी तक अगर देख रहे हैं ना ऑडियंस, तो उनको अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, फैन बन गए हैं अभी तक। यस, हम्म। एब्सोल्युटली। ठीक है, सो हाँ अब हम जी। लोग बात कर लेते हैं, अगला एपिसोड का एक ओवरव्यू दे देते हैं, क्या सीखने वाले हम लोग। हाँ, so if you've seen this episode till this moment, I'm sure you're going to come back the next episode because we are progressing. We started with who should become a coach, how do you become a coach, why should you get into the coaching industry to begin with. Today we've spoken about the first topic, which is niche. In the हम्म। next topic, we're going to talk about how do you start once you've identified your niche, once you've identified that this is the problem that you're going to solve, how do you convert that idea into a product? Once यस। you've created a product, how do you convert it into an offer so that you can bring it out to the market? When Pankaj keeps talking about laser webinar, when I keep talking about the paycheck to profit membership, how have we created these products, these brands, these offerings to our customers? Why do we keep talking about webinars? How does your product and offer fit into the whole concept of webinars? In the next episode, we are going to talk only about product and offer, but it is also going to be a stepping stone to the next part, which is going to be selling, which is going to be how do you then create a webinar pitch. Everything is interconnected. I really appreciate you taking the time and staying till this moment. I really want you to connect with us, tell us what are we doing right, what are we doing wrong. Please keep giving us your feedback, and do not forget to watch the next episode, because if you found value in this episode, believe me, we are just getting started. The first 3 episodes were not even a warm up, it was more of an introduction. यस। This I would want to consider as our warm up. This is when we are actually getting into our game. This is यस, why we started this podcast. So, एब्सोल्युटली। yeah. सो नेक्स्ट फ्राइडे 6 PM आप लोग रेडी रहो, हाँ जी। यू कैन सब्सक्राइब एंड कम बैक। एंड सेकेंड वाला एपिसोड जो हमारा होने वाला है, ऑफर रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। Of course. निश आप सेलेक्ट कर लो, तो निश के बारे में लोग डिसाइड किए, वाइड रख लो, नैरो रख लो, जैसे रखना है रखो। बट ऑफर अगर आपका अच्छा नहीं रहा, तो निश आपका कुछ भी रहा, बिकना ही नहीं है आपका प्रोडक्ट, आपका रेवेन्यू नहीं हो Absolutely. रहा है, तो फिर तो कोई Absolutely. मतलब ही नहीं है निश वगैरह सेलेक्ट करके। सो उसके लिए मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए, हम लोग हाँ। ऑलरेडी, एंड विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी ऑफ कोर्स। हाँ। चैट ठीक है। जीपीटी को लेकर हमने लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा बातें की हैं, तो यस। पिछले एपिसोड में चैट जीपीटी वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। यस, सो वो बात करने के बाद से आई थिंक लगभग 10-15 दिन हो गया, मैंने चैट जीपीटी यूज भी नहीं किया अभी आई एम तक। प्राउड ऑफ यू माई मैन, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम्म। यस। बस, हाँ। अच्छा ठीक लगता है बिना चैट जीपीटी का भी करना, बट ठीक है। है, हाँ, इट्स गुड। यस, तो ठीक है एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। Thank you so much for watching. थैंक Thank you यू। for giving us your time. We can't wait to connect with you again. Connect with us. You have our Instagram handles, our Twitter handles, our LinkedIn profiles in the description below. Please connect with us, and we'll see you in the next episode. Take care. थैंक यू। Bye. Thank बाय। you so much.